Hi everyone, very good evening, guys. I hope I'm audible and visible to all of you, and welcome to the Pathology Reignite session. Of course, this is a live class, so we are open to a lot of doubts. So, today, if you saw the test, it was predominantly based on general pathology and half of systemic pathology. So, that automatically means that for tomorrow, if you want to revise something, it is the remaining half of systemic pathology, hematology, and blood banking. So, that will remain for tomorrow, and 50 questions you will get of the same. So, now before I begin, how was the test for you? Because I did not keep it as a very difficult test. This was not something where I wanted to bring your motivation levels down and try and act as a strict examiner. My purpose of giving this test was that you should have time management. You should be able to solve 50 questions in the time frame. Second, you should be able to recall whatever you have studied. And third, you should be able to have a complete discussion of not just that question but the topic around it. So we just want to finish off everything that is important around this. No one will ask me the time कि मैम कितने hours का session होगा. I don't have a time frame. मैंने ऐसा कुछ decide नहीं करा that I will only teach them for 2 hours or 3 hours. My purpose is to finish whatever I have thought. Whatever 80 slides I have prepared, I have to finish all those 80 slides, and whenever they are done, I will let you know. I will also let you know midway so that you know that, okay, how much time is left for the class. Okay, so anything before we, begin, anything that most of you said easy to moderate. Okay, perfect. Exam में कैसा होगा? Moderate to difficult. Why? Because examiner is going to always play with options. So today I have given you an easy to moderate paper, but while I will teach you right now, I will tell you कि अच्छा इस question में ये option change हुआ तो आंसर कैसे चेंज होगा. Also, we have to make sure we are not doing question and answer. We are doing every other option के A, B, C क्यों नहीं था. Why are they not the correct answer? So remember, in the exam, before I start with the session finally, you are not selecting one answer. आप इस aim से नहीं जा रहे हो कि वो मुझे एक question का एक answer लगाना है. Your aim in the exam is that I have to rule out 3 options. Maybe pathology में ये इतना help नहीं करेगा, but it will help a lot in other subjects. Medicine, surgery, when options are very close, PSM, when nothing is making sense, then you will realize that नहीं मुझे correct answer तो नहीं आता, but let me read the options. Maybe as I read the options, I can rule out. So remember, the game is not selecting the correct answer. The game over here is ruling out the incorrect questions and answers. Okay with this, everyone? Now, many of you are saying 30i. So as I said, I did not give this exam that I ask you your score or I ask you how much percentage did you get, how many corrects, incorrects did you get. My purpose of this was two. Number one, time management, that you could complete this exam in the time frame. Second, discussion. So abhi ke liye forget the score for some time, whether you got 50 out of 50 or 0 out of 50. For me, I am going to teach you with the same dedication. You are going to sit with me with the same dedication. Bas utna chahiye for today's class. Let's get going. I have rearranged some questions because I have arranged them in general path chapter wise ताकि थोड़ा सा continuity बना रहे. I'm starting with the first question over here. And this is what we have. You had a match the following. अगर आप recent most अभी जो INI-CET गया, which was 2 days back, please go through the recall video of INI-CET on YouTube because that is the closest exam close to FMG. तो मतलब topics overlap होंगे. And I realized that this exam had 2 very important patterns. एक था match the following pattern, which I am expecting will come in your paper also, and this is the best. जिसके exam में ये pattern आता है वो सबसे खुश आता है, because in this, even if you know 2 options, तो third option you can guess. दूसरा पैटर्न था मल्टीपल ऑप्शंस. इंस्टेड ऑफ वन आंसर यू हैड 2-3 आंसर्स. सो वी विल प्रैक्टिस दैट ऑल्सो. अभी के लिए मेनी ऑफ यू हैव गिवन मी एन आंसर. सो वी हैड स्पोकन अबाउट 3 थिंग्स. आई हैव मेड यू लर्न एज PKK, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी. हमेशा एग्जाम में रिवर्सिबल सेल इंजरी नहीं आता, इरिवर्सिबल सेल इंजरी पे क्वेश्चन आता है. सो व्हाट इज दिस PKK? इफ आई हैड टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, व्हाट आई फील इज कि अब ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा. नेक्स्ट टाइम इन द एग्जाम दे विल गिव यू समथिंग टू डू विद डायग्राम, and they will say match the diagram with the word given, so that you know they want to understand कि आपको word का मतलब पता है. So the first thing that you have is pycnosis. Pycnosis मतलब, can you see what has happened to the size of the nucleus? The nucleus has become very very छोटा. It has become very very condensed. So that is going to be pycnosis. Next you can see what is happening. Next in line we have karyorhexis. Read the word again. Karyo मतलब nucleus, rhexis मतलब टूटना, fragmentation. So look over here, nucleus ऐसे parts में टूट गया, karyorhexis. And last one
one is going to be karyolysis. Lysis का तो मतलब भी पता लग रहा है कि मैम the nucleus is gone. So what are the three steps in which the nucleus goes? Pycnosis, karyorrhexis, karyolysis. You just had to do match the following. Everyone told me correctly. But एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? इमेजेस दिया होगा, इमेजेस को मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा. You will be able to do. In the same paper, to complete the topic, I decided that with irreversible cell injury, we are going to have one more topic, and that one more topic is going to be this, which is the most important electron microscopic finding that you have in irreversible cell injury. Now remember, in the exam, irreversible cell injury का क्या question आ सकता है? अगर light microscopic finding होता, light microscopy पे क्या दिखता है मैम? light microscopy पे तो ये सब दिखता है, pink, blue, you know the two microscopes, pink, blue. तो ये जो PK हमने पढ़ा, ये कहाँ पे दिखता है? दिस इज पिंक ब्लू वाला फोटो ना. सो मैम ऑल ऑफ दिस इज सीन ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी. एग्जामिनर ने चेंज करा क्वेश्चन. ही सेड व्हाट विल यू सी ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इलेक्ट्रॉन में तो सेल के अंदर का इनर मोस्ट डिटेल यू विल बी एबल टू सी. दैट मीन्स आई विल बी एबल टू सी द माइटोकॉन्ड्रिया. एंड व्हाट हैपेंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया? अमॉर्फस डेंसिटीज. दिस ऑप्शन आई गेव टू कंफ्यूज यू, बिकॉज स्टूडेंट्स ने याद क्या करा होता है? अमॉर्फस डेंसिटीज माइटोकॉन्ड्रिया. बट छोटा छोटा अमॉर्फस डेंसिटीज तो हर इंजरी में दिखेगा, रिवर्सिबल में भी दिखेगा. इट हैज टू बी लार्ज अमॉर्फस डेंसिटी. सो व्हाट इज अमॉर्फस डेंसिटी? लेट्स टेक 2 minutes एंड रिवाइज इंटायर इरिवर्सिबल सेल इंजरी. कैन यू टेल मी कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या दो पॉइंट्स होते हैं? व्हेन डू आई से दैट अच्छा नाउ नथिंग कैन हैपन, इरिवर्सिबल है, अब ये ठीक ही नहीं हो सकता? मैम टू थिंग्स हैव टू हैपन. नंबर वन, मेम्ब्रेन डैमेज. तो ठीक है, सेल का मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं, सेल का मेम्ब्रेन गया, मतलब इंजरी इज नाउ इरिवर्सिबल, नाउ नथिंग कैन हैपन. As soon as the membrane is damaged, fill in the blanks guys. What is going to rush inside? क्या भाग के अंदर आता है सेल के? कैल्शियम. कैल्शियम नॉर्मली, अच्छा फिजियोलॉजी पहले बताओ. नॉर्मली कैल्शियम हमेशा कहाँ है? नॉर्मली मैम कैल्शियम सेल के बाहर है. ऐसा क्यों? वाई हैज़ गॉड डिसाइडेड दैट कैल्शियम शुड रिमेन आउटसाइड द सेल? कैल्शियम को अंदर नहीं आने देना. वाई? बिकॉज कैल्शियम, बायोकेमिस्ट्री में जाओ, बायोकेमिस्ट्री से कैल्शियम हमेशा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है. नॉर्मली today sitting over here, do you want that calcium should activate your enzymes and you should kill your own self and you should die? ऐसा नहीं चाहते. तो हमने कहा नहीं, कैल्शियम को अंदर नहीं आने देना, एंजाइम्स को एक्टिवेट नहीं होने देना. लेट्स कीप द कैल्शियम आउटसाइड. दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी. बट नाउ मेम्ब्रेन डैमेज, मतलब ऑल द कैल्शियम विल रन इनसाइड. एज सून एज दिस कैल्शियम विल रन इनसाइड, व्हाट विल दिस कैल्शियम डू? जैसा बायोकेम में पढ़ा था, all enzymes will be activated. Can you recall for me? टॉपिक खत्म कर दो ना. what are the three enzymes that are activated? three things. सेल की तीन चीज़ें तोड़नी है. you want to break the three things of a cell. if I want to break the cell membrane, मतलब phospholipid, which enzyme will I activate? Phospholipase. if I want to break the proteins of the cell, I will activate protease. if I want to break nucleus, I will activate nuclease. अच्छा, अब we come back to question 1. nuclease एक्टिवेट हुआ था तभी तो मैम दोज थ्री थिंग्स हैपेंड. PKK, pycnosis, karyorrhexis, karyolysis, all of that happened because this nucleus was activated. वो क्यों एक्टिवेट हुआ? because calcium came inside. so you've come a complete circle here. but now what happens next? this calcium goes and sits where? it goes and sits in the mitochondria, and this is what you call as large flocculent densities, or also referred to as the amorphous densities. इसे बोला जाता है large flocculent amorphous densities. so let me ask you two questions. this is seen in which organelle? this is seen in the mitochondria. and what is this made up of? this is made up of which ion? it is made up of calcium. so basically आपके सारे irreversible cell injury के questions are done. Okay, before I proceed forward, someone had mentioned that the voice is cracking. Anyone else who is facing any kind of issue with technical, कोई AV problem है, audio, video या voice? No. Video lagging does not seem to be happening at my end. Honestly, I cannot see that. मुझे as per my screen, I feel everything is working, touch wood, fine. It is okay for everyone else, so fingers crossed. For anyone who is facing temporary issues, it could be device related. Rejoin करके देख लो, log out, log in करके देख लो. I think that should sort it. Okay, now coming back, we are done with our question number 2 also, and we are ready to move on to question number 3. Something like this came in the very recent FMG exam, and students who had listened प्रॉपरली टू रैपिड रिविजन वीडियोज, उन्हें ये क्वेश्चन आता था. तो ये रीसेंट रिपीट है. दिस इज द लास्ट सेंटेंस आई हैव टॉट यू इन चैप्टर 1. फर्स्ट चैप्टर सेल इंजरी का लास्ट लाइन इज, यू हैव अ पर्सन हु इज
50 years old, having muscle weakness, muscle atrophy, and affecting the extremities. So when you start off with this kind of a question, you will immediately, muscle से related आप क्या पूछते हो clinically, patient को पूछते हो can you do your day to day work. Patient is saying that he cannot do his day to day work, button नहीं लगा सकता, he cannot wear his clothes properly. Okay, then you notice there are fasciculations, muscle strength is less. So you know neuromuscular disorder की बात हो रही है, कुछ nerve muscle relation चल रहा है यहाँ. And as soon as you say SOD1 gene mutation, your answer is in front of you. It is ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Last time सिर्फ यही question आया था. SOD1 gene mutation causes which disease? Amyotrophic lateral sclerosis. And please note, this is SOD. What is SOD? Superoxide dismutase. इस पे और क्या question आ सकता है? Because this time they will give you something different, ना? So I will come to that. But what is ALS? ALS is a upper motor neuron plus a lower motor neuron disorder. It is a combination. That is why patient was having these kind of muscle atrophy and fasciculations. Very very good. अच्छा, अब एक easy question, एक tough question. पहले tough question खत्म करेंगे. Something which is INI-CET level, but I feel that आजकल INI-CET and FMG काफी पास चल रहा है. They try to give some overlapping topics. So if they ask you amyotrophic lateral sclerosis microscopically क्या show करता है? What does it show? Very good. Some of you have answered for me. In the brain it can show Bonina bodies. This is a very कि बस एग्जाम से पहले याद करो बाद में भूल जाओ kind of knowledge. Okay, so you have to know ALS, SOD1 gene mutation, upper lower motor neuron दोनों affected होगा. Bonina bodies दिखेंगे. Yes, for general knowledge, Stephen Hawkins had it, as all of you are telling me. Amazing. अब easy question पे चलते हैं. ये SOD1 पे और क्या क्या question आता है? What is SOD? You said superoxide dismutase. क्या feature याद आया? Something to do with free radicals. So what question can I get on free radicals? So you will realize that, ma'am, when there were 50 questions in today's class, why have you prepared 80 slides? You should have prepared 50 slides, one slide per question khatam, because I have decided 50 questions so I have to teach you because you gave a test, but I have to prepare you for another 50 which can come in the exam. So you will realize at the end of these 3 hours that you've not done 50 discussion, you've done a discussion of 100 questions. So now what can come on superoxide dismutase? Free radicals पहले पढ़ो. Free radicals कैसे बनते हैं? Free radicals बनते हैं from oxygen. Every day you are breathing oxygen, obviously, but these days, thanks to the AQI that is so pathetic, you are also breathing in a lot of pollution. You are breathing in a lot of poisons, toxins, chemicals. So do you know what is this oxygen getting converted to? It is getting converted to a free radical called superoxide. So why are they saying that AQI kharab hai? We are living in the worst conditions. Reason is not that our lungs are only getting affected. Our entire body is getting affected because we are breathing oxygen along with such bad pollutants. All of that is getting converted to superoxide. The story doesn't end there. The story doesn't end there. This superoxide then gets converted to hydrogen peroxide, H2O2. By which enzyme? By superoxide dismutase. SOD is converting it to H2O2. Story doesn't end there also. After this comes the most deadly thing. Superoxide dismutase ने H2O2 बनाया. H2O2 now gets converted to what? Very good, hydroxyl. So you know a question that can come is arrange the free radicals in the order of formation. तो सबसे पहले क्या बनता है? Superoxide. Second क्या बनता है? H2O2. What is the third one? Hydroxyl. And why did I say most deadly, most dangerous? Because if someone asks you that previous year question, which is the most potent free radical, किससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है? मैम सबसे ज़्यादा डर लग रहा है from hydroxyl. That is number one. Now you will tell me that अच्छा, who is making this most deadly dangerous thing? कौन बना रहा है? This is happening because of a reaction which is known as Fenton's reaction. What is Fenton's reaction? नाम से देखो, name Fenton, Fe means iron. So this reaction is because of metals. Iron is mediating it, and that is not where the story ends. They will ask you कौन सा iron? Fe2 plus changes into Fe3 plus. This is something. Ma'am, other than that, can copper also be used? Any metal. Any metal can be used, but because Fenton, Fe, तो हम iron हमेशा याद रखते हैं. So this is also not where the story ends. वो chemistry में जाएंगे. They won't write Fe2 plus to 3 plus. They will write the chemistry names of it. So always remember, ferrous is changing to ferric. That will be the question that you will get. And that is what is Fenton's reaction. पूरा complete हो गया. तीनों free radicals बन गए. Which is the most dangerous? It is free radical hydroxyl, which is most dangerous.
dangerous. Now you know that acha, if this SORD gene mutation occurs, which is the disease that ma'am told us, it is going to be a myotrophic lateral sclerosis. Okay with everyone? अब इतना डरा दिया मैम, AQI तो is horrible for a lot of us. Most of us in North India are breathing the worst air possible. If you are in Delhi, then to may God bless you. So then in that situation, who will protect us? What is my body doing? Can you tell me the three things which are going to act as a protection? Number one, what is the enzyme which is going to act as a protection in my body? Catalase. God knew, Bhagwan ko pata tha that one day these people will live in an AQI of 1000. So give them something for protection. What will catalase do? Catalase will break down H2O2. Khatam. It will break it into water and all. So H2O2 gayab. Second, we have something called as glutathione peroxidase. What does glutathione peroxidase do? Glutathione peroxidase breaks H2O2 also. Glutathione peroxidase breaks hydroxyl also. टूट गया. तो मैम कैटलेज ने H2O2 तोड़ दिया, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज ने दोनों को तोड़ दिया, H2O2 हाइड्रोक्सिल. सो नाउ आई एम सेफ, एटलीस्ट टेम्पररीली आई एम सेफ. बट देर इज नो वन ब्रेकिंग सुपर ऑक्साइड. गॉड फॉरगॉट. गॉड मेड अ सिली एरर, सिली मिस्टेक. जैसे आप करते हो सिली मिस्टेक जीटी में, भगवान से भी सिली मिस्टेक हुआ कि अच्छा देर इज नथिंग टू ब्रेक दिस सुपर ऑक्साइड. क्या करे? देन यू डिड जुगाड़. व्हाट डिड यू डू? यू सेड कि अच्छा इफ देर इज नो वन ब्रेकिंग सुपर ऑक्साइड, लेट मी चेंज इट टू H2O2. By which enzyme? By superoxide dismutase, because H2O2 can be broken down by a lot of things. So can I say कि superoxide dismutase दोनों काम करता है. Superoxide dismutase has dual action. You will tell me yes or no, true or false. Superoxide dismutase results in formation of free radicals. True statement. Superoxide dismutase helps in breakdown of free radicals. That is also true. तो formation में भी help करेगा, protection में भी help करेगा, dual action. And now you know why SORD is important, because the disease with the mutation is ALS. Question 3 also done. True for both statement. Yes, written in one sentence ma'am. Crystal clear. Formation also and protection also. दोनों चीज़ों में help करेगा. Perfect. Moving on to question 4. This is also a recent exam question. You might feel अरे ये कौन पूछेगा apoptosis वाला, caspase and all. Examiner is obsessed with caspases. Last INICT, last NEET PG, last FMG. Caspase तो आया ही आया है as a hat trick, so you can't escape it. Now coming to what is made in the apoptosome complex. Obviously apoptosis कौन करा रहा है? And the answer is cytochrome C and APAF. To be very precise, APAF1 है उसका पूरा नाम. तो पहले तो समझते हैं what is happening over here. ये कहाँ से आ रहा है? What is this cytochrome C? Who is releasing cytochrome C? Cytochrome C is being released by the mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया नोज कि अच्छा अपोप्टोसिस कराना है, सेल डेथ कराना है. हाउ शुड आई डू सेल डेथ? अपोप्टोसिस के लिए व्हाट डज माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज? इट रिलीजेस साइटोक्रोम सी. दिस साइटोक्रोम सी देन गोज एंड बाइंड्स टू विच फैक्टर? इट गोज एंड बाइंड्स टू APAF1. टुगेदर व्हाट आर दे नोन एज? टुगेदर दे आर नोन एज अपोप्टोसोम. एंड दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड कि अच्छा ये अपोप्टोसिस कराएगा कौन? दो लोग मिलके कराएंगे, साइटोक्रोम सी एंड APAF1. बट मैम आई कैन सी अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो ओवर हियर. नाउ कैन यू revise for me all the caspases that the examiner can ask me? And last INICT इतना easy सा question match the following आया था कि सारे caspases को match the following कर दो, which I think all of you will be able to do so easily. So you will tell me apoptosis में what are the two pathways? One is known as starting apoptosis, second is known as executing apoptosis, right? So initiation में क्या है? When I talk about initiation, मैम starting ही तो सबसे मुश्किल है ना. Like I always, did you watch the main video lectures in which main वीडियो तो चलो मैम टू मच यू आर टॉकिंग अबाउट, बट इनिशिएशन करना सबसे मुश्किल है. आई ऑलवेज टोल्ड यू स्टार्टिंग योर स्टडीज इज ऑलवेज डिफिकल्ट. हम क्यों पढ़ाई शुरू करते हैं? व्हाई डू वी स्टार्ट समथिंग? ईदर इट इज एक्सटर्नल प्रेशर, पीपल टेलिंग अस व्हेन विल यू क्लियर द एग्जाम, व्हेन विल यू गेट मैरिड, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्सटर्नल पाथवे, और आई माई सेल्फ एम मोटिवेटेड दैट आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ अहेड, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस FMG एग्जाम, मूव अहेड इन लाइफ. तो इंटरनल मोटिवेशन तो यही था. अपोप्टोसिस भी स्टार्ट करने का टू पाथवेज, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक के लिए कौन सा कैस्पेस था? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन मी द आंसर, 8 and 10. एक्सट्रिंसिक के लिए क्या है? कैस्पेस 8 and X मतलब 10. तो एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया. इंट्रिंसिक के लिए क्या बचा? इंट्रिंसिक के लिए बचा कैस्पेस 9. सो मैम पाथवेज आर डन. ओके, बट व्हेन आई कम टू एग्जीक्यूशन, स्टार्ट तो कर दिया, अब एग्जीक्यूट करना है, प्लान का एग्जीक्यूशन करना है. दैट इज गोइंग टू बी कैस्पेस 3, 6 and 7. एंड बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव गिवन सच गुड आंसर्स, can you tell me which out of these is the most important caspase? 8, 9, 10, 3, 6, 7. इनमें से सबसे important caspase कौन सा होता है? That is caspase 3. Very good.
तो ये तो डन, हमने अपोप्टोसिस के कैस्पेजेस याद कर लिए. व्हाट इज नेक्रोप्टोसिस का कैस्पेज? एनी कैस्पेज नंबर कमिंग टू योर माइंड? नो, इफ यू टेल मी अ कैस्पेज नंबर फॉर नेक्रोप्टोसिस मीन्स you were sleeping while watching chapter 1, because the thing which I have shouted out 10 times is that it is caspase independent programmed cell death. इसमें caspase use ही नहीं होता, so you cannot use the word caspase at any cost, and no one said. बट मैम कैस्पेज नहीं यूज कर सकते, कुछ और यूज कर सकते हैं, उसका इनएक्टिव वर्जन यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज प्रो कैस्पेज 8 वर्ड यूज करोगे चलेगा, बट इफ यू यूज कैस्पेज नॉट अलाउड. कमिंग टू द लास्ट, व्हाट आई एक्सपेक्ट इन दिस एग्जाम, बिकॉज दिस केम इन द लास्ट INI-CET वेरी रिसेंटली दिस ईयर, इट केम इन नीट PG, तो अब बचा FMG, उसमें रिपीट हो सकता है. पायरोप्टोसिस. पायरोप्टोसिस मीन्स नेक्रोप्टोसिस, अपोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, सेल डेथ तो मैम मुझको पता है. पायरो का मतलब क्या? वो वाला सेल डेथ इन विच द पेशेंट ऑल्सो हैज पायरेक्सिया. पायरेक्सिया मीन्स फीवर, एंड येस दैट इज वेयर अ क्वेश्चन विल कम. डोंट जस्ट से कैस्पेज 1, पूरा बताओ. 1, 4, 5, 11. यू हैव टू मेक श्योर you know all 4 of these. 1, 4, 5 and 11, out of which, why did some of you only say caspase 1? because आप किसी और क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे मुझे. caspase 1 out of these is going to go and increase interleukin 1. 1 for 1, caspase 1 क्या increase करेगा? interleukin 1, and interleukin 1 is now going to go and cause fever. So now read the question very carefully. Give me 2 questions over here, 2 answers बताओ. If I say all the caspases involved in pyroptosis, you will say 1, 4, 5, 11. If I say which is the caspase in pyroptosis responsible for fever, then your answer is only caspase 1. ये वाला भी हो गया. Question 4 के साथ उसके related question. This now I want to know what did all of you mark, because I feel यहाँ पर silly mistake हुआ होगा. So let us check this question once. Question number 1. Which of the following cell death is most likely to show pattern B? Most of you must have thought मैम ने ऐसा पढ़ाया था. See, many of you have said. Okay. And ये so many people send me screenshot, ये मैंने ऐप में से ही लिया था. So many people say कि मैम ये तो गलत आंसर है ऐप में and all of that, because I have always taught you ये क्या टेक्निक है? DNA electrophoresis. You are trying to study DNA. मैम पैटर्न A में तो you can see कि DNA बिल्कुल ऐसा नॉर्मल DNA, कोई टूटा फूटा नहीं है, तो पैटर्न A तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल. सेकेंड में you can see the DNA is broken like this, means it's the famous step ladder pattern. Step ladder pattern you have taught us ma'am, it is seen in apoptosis and it is seen in necrosis, but ज़्यादा किस में दिखता है? It is seen in apoptosis more. अगर क्वेश्चन होता which of the following cell death will show pattern B, सिर्फ इतना, then my answer would have been both. But here they said which is most likely to show pattern B, so then my answer becomes apoptosis. See, the question framing is so important to understand in the exam. If I just say which of the following cell death will show pattern B, answer is both. If I say most likely बताओ, single best answer बताओ, then your answer is going to be apoptosis. Reading the question was so important in the paper. This is the only reason I gave this over here. Moving on to the next. Pattern C क्या है? ऐसा पूरा smudge हो गया, पूरा smudge हो गया मतलब smearing pattern. Smearing pattern B, this is also another controversial question. ये भी दोनों में दिखता है, necrosis and apoptosis, but more commonly seen in necrosis. So can I say दोनों pattern? दोनों में दिखेगा. But step ladder pattern is seen more with apoptosis and smearing pattern is seen more with necrosis. I know some of you made this silly mistake. The reason for giving this question was that you commit the silly mistake, so that you commit it today and you don't commit it on the day of the exam. Now I know जब भी ये question आएगा you will be staring at it with your eyes wide open कि क्या पूछा गया है. Question 5 में there is nothing more for me to teach you. Moving on to the next one, that is question 6. ऑटोफेजी, अ टॉपिक विच हैज़ सुपरफिशियली टच अपॉन हुआ है काफ़ी बार. ऑटोफेजी का मतलब क्या है? आंसर तो आई नो मेनी ऑफ यू नो. ऑटोफेजी का मतलब, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड फेजी मीन्स ईटिंग. सेल्फ, हम खुद को खाने लग गए, लाइक मे बी लाइक एनिमल्स, तो उसका क्या नाम रखा मैम? दिस इज नोन एज कैनाबलिज्म. हम क्यों अपने आप को एकदम से, वाई विल सडनली वन फाइन डे वाई विल आई वेक अप एंड आई से आई वॉन्ट टू ईट माई ओन माइटोकॉन्ड्रिया, आई वॉन्ट टू ईट माई ओन राइबोसोम्स, आई वॉन्ट टू ईट माई ओन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऐसा क्यों, मतलब सडनली मुझे ऐसा क्यों करना है? मल्टीपल सिचुएशंस. ईदर इट इज सीन इन ओल्ड एज, ओल्ड एज लिखें या थोड़ा इंग्लिश में उनको दे वांट टू राइट इट सेनाइल, it's the same thing, because in old age probably people are not eating too well.
the diet goes down. So this means whenever there is a situation in which there is an element of malnourishment, malnutrition, or someone is not eating an adequate diet, that is the moment what is your body going to do? Your body will say khana nahi aa raha, nutrition is not coming, but I have to survive. So can I say this is a kind of a survival mode that your body goes into कि अच्छा चलो बाहर से खाना नहीं आ रहा तो let me survive by eating my own mitochondria. That is one way. But which diseases can show you? Please remember brain की दोनों diseases, Alzheimer's disease and Parkinson disease. Recent updates say that the reason, one of the many reasons of Alzheimer's and Parkinson's is autophagy. यहाँ पर एग्जामिनर टच कर सकता है. तो मैम क्या पूछा जाएगा? 2 questions will be asked on autophagy. नंबर 1, कौन से जीन की वजह से होता है? तो कॉमन सेंस, ऑटोफेजी ATG जीन की वजह से होता है. सो इट इज यूजुअली ATG1 जीन. देयर आर मेनी, ATG 1 2 3 4 7 8 10, हमें 1 याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट 1. ATG1 जीन की वजह से होता है. ओके, व्हाट इज द मार्कर विच आई आस्क्ड यू इन द क्वेश्चन? एंड द मार्कर इज गोइंग टू बी LC3. कुछ लोगों को फुल फॉर्म वाला कीड़ा होता है कि नहीं मैम फुल फॉर्म बता दो. इट इज लाइट चेन 3. विल इट बी आस्क्ड इन द एग्जाम? नो. सो इफ आई एम नॉट राइटिंग, मतलब टेक अ स्किप. अभी जो भी इधर उधर का कीड़ा है ना कि मुझे जानना है, वो थोड़ा 1 महीने के लिए यू हैव टू कट दैट, बिकॉज अभी योर purpose right now is not that you have to gain all the knowledge in the world. Right now your purpose is that I have an exam in 2 months, I have to gather the knowledge abhi ke liye only till the exam. After the exam I have all the time to study a lot of things. Okay, now coming back, ye kya likha hai yahan pe? Many of you had answered. Annexin A1 and annexin 5 kiska markers hai? Annexin 5 to I think no one is messing up. It is the marker for apoptosis, and annexin A1 is the marker of hairy cell leukemia. Why did I write it in such weird letters? Because you know the mnemonic for it. Annexin 5 is apoptosis. Annexin A1 is going to be for hairy cell leukemia. Hairy cell leukemia हिमैट में है. कल इस पे लीकिंग 1 क्वेश्चन ऑफ टुमारोज एग्जाम, कल कुछ ना कुछ इस पे आपको मिलेगा. hairy cell leukemia, maybe not annexin A1, but something you will get tomorrow. Anyway, question 6 also done. Moving on to question 7. This is also something which I have not taught earlier in LRR sessions. I know you guys are very good with those one line, वो तो रट रट के बैठे हो. सो आई वॉन्टेड टू ऐड समथिंग जो अभी तक नहीं रट के बैठे हो प्रॉबली, एंड दैट इज गोइंग टू बी टैबी कैट इफेक्ट. व्हाट इज टैबी कैट? कैट मतलब कैट, टाइगर, कैसा भी नाम बता लो. मैम टाइगर और कैट में हमेशा स्ट्राइप्स होते हैं ना बॉडी में, तो बेसिकली टाइगर या टैबी कैट मतलब कुछ स्ट्राइप्स बन रहा है. एंड दिस इज सीन व्हेन फैट डिपॉजिट्स इन द हार्ट. हार्ट का क्या कलर है? रेड कलर, ब्राउन रेड कलर नॉर्मल. फैट का क्या कलर है? येलो. सो नाउ यू कैन इमेजिन रेड येलो होगा, टाइगर की तरह स्ट्राइप्स बनेंगे. सो दे राइट टाइगर और दे राइट टैबी कैट. इट मीन्स द सेम, मीन्स इन द हार्ट fat is getting deposited. Now this was a path micro correlation. When you will go to microbiology, you will see I will add a question on this once again. That is diphtherial myocarditis. Diphtheria, all of us have heard of diphtheria. अभी माइक्रो का RRR नहीं हुआ, बट पढ़ा है ना. डिप्थीरिया में क्या होता है? बुल्स नेक वाला फोटो बहुत फेमस है मैम. बच्चे का नेक इज स्वोलन, उसके साथ देयर इज अ स्यूडो मेम्ब्रेन इन द टॉन्सिल. तो ये वाला फोटोज भी नो, स्यूडो मेम्ब्रेन होगा, बुल्स नेक होगा. बट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? डिप्थीरिया इन द लेटर रन कैन कॉज कार्डियक इश्यूज, मायोकार्डाइटिस. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज मायोकार्डाइटिस? इट इज फैट डिपोजिशन. तो एक रीजन. नाउ इफ आई आस्क यू हार्ट में फैट, मतलब फैटी लिवर तक तो सुना था सबने, फैटी हार्ट अगर बोला तो थोड़ा वियर्ड है ना मैम. तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? वन इज डिप्थीरिया, understood. Other thing is any kind of cell injury. Do you know right from the starting, reversible cell injury में also fat can go into the heart, and that can result in tiger or tabby cat effect. Now you will tell me easy वाले questions हो गए. टफ वाला क्वेश्चन जो मेडिसिन से आता है. डू यू नो एनी कार्डियोमायोपैथी इन विच फैट कैन डिपॉजिट इन टू द हार्ट? इज इट हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी? नहीं, बिकॉज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में तो मैम बनाना शेप्ड हार्ट होता है, वो तो हमें आता है. दैट इज नॉट फैटी डिपोजिशन. इज इट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी? नो, दैट ऑल्सो डजेंट शो एनी फैट. फैट एलिमेंट इज अ टफ क्वेश्चन. समवन सेड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. नो, हाइपरट्रॉफिक यू कैन नॉट फॉरगेट एवर कि वो तो बनाना शेप्ड हार्ट है, उसमें फैट का कुछ नहीं है. It is a difficult one. So when you will do medicine, because I know medicine इतना vast है कि कभी खत्म नहीं होगा, you will study something called ARVCM. The only thing that you have to know in ARVCM is this. So what is ARVCM? CM तो पता है कार्डियोमायोपैथी. ओके, तो कौन से वेंट्रिकल में हो रहा है मैम? राइट वेंट्रिकल का प्रॉब्लम है, तो बस A याद रखना है. What is A? The patient is going to have arrhythmias. So it is arrhythmogenic. Now I won't write arrhythmogenic right ventricular
कार्डियो मायोपैथी तो होता क्या है? तो समवन आस्क्स यू कि अरिथमिया हो रहा है, कॉमन सेंस, कार्डियोमायोपैथी है, कॉमन सेंस, राइट वेंट्रिकल में हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? नाउ यू नो फैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन द राइट वेंट्रिकल, दैट इज व्हाट इज द रीजन फॉर अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी. इजी वाला क्वेश्चन डन, टफ वाला क्वेश्चन डन. क्वेश्चन 7 इज ओवर फॉर यू. बाकी भी अगर पढ़ो यू विल रियलाइज कि जैंथोमा क्या है, लिपिड का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रोलोसिस क्या है, कोलेस्ट्रॉल फैट प्रॉब्लम, फैटी लिवर फैट प्रॉब्लम. तो ये सब फैट रिलेटेड थे, बट वर दे कॉजिंग टैबी कैट इफेक्ट? नो, दे वर नॉट. Finally, moving on to question number 8. This question is expected this time. Reason I gave it in today's session was 2 days back it has been asked in INICET. So I wanted you to cover the recent exam के बाद में वो recall ज़्यादा ना देखना पड़े. Everything is settled. So which technique is used to visualize calcium deposits? If I look at the options, forget बाकी का question, मुझे calcium से related एक ही stain यहाँ पे दिख रहा है which is alizarin red S. But they had further asked when you want to detect minute amounts of calcium. तो minute के लिए भी यही है alizarin red S. So what are the three? पहले तो इसका बताओ, then बाकी के options भी बताओगे. What are the three stains for calcium? हमेशा याद रखना, calcium calcium kosa gives what color to calcium? Kosa gives kala color to calcium. So we always study calcium kosa kala. So I don't think you are messing up on this. Calcium always gets a black color with one kosa. Okay, what next? Then another that is calcine stain. तो calcium का kosa stain, calcium का calcine stain, and the next alizarin red S. No one will ask me what color does alizarin red S give. It gives a red color. How dumb. But do you know this was one of the questions that came day before yesterday in INICET, where they were making you match the name of the stain with the color. I mean common sense है कि Prussian blue क्या color देगा? Blue color देगा. Alizarin red S क्या color देगा? Red color देगा. Oil red O क्या color देगा? Red color. But such a dumb question also sometimes comes in the exam. And I want to tell you that हम exam में जाते हैं thinking that I am Einstein and मुझे आज कुछ नया डिस्कवरी करके आना है, बिकॉज समथिंग वेरी रेयर विल बी गिवन टू मी इन द एग्जाम. ये हमारा माइंड सेट होता है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ कंपेटिटिव एग्जाम. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देयर विल बी 10% क्वेश्चन आउट ऑफ द इंटायर पेपर, 10 to 20%, वे यू विल फील कि वो अल्ट्रा बेसिक था. आउल आई अपियरेंस पूछा गया, गॉशर्स का क्रम्पल टिश्यू पेपर अपियरेंस विच आई विल टीच यू इन अ वाइल पूछा गया, एलिजारिन रेड एज रेड कलर देता है, इतना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन. सो डोंट थिंक यू आर एवरी डे गोइंग टू डायग्नोज न्यू डिजीजेस. सब कुछ वहाँ पे नया नया नहीं होगा, कुछ बहुत बेसिक होगा, उसमें ओवर थिंकिंग नहीं करना. डोंट थिंक दैट अच्छा मुझे रेड लग रहा है तो आंसर तो ब्लैक ही होगा, ये वाली गलती नहीं करके आना. ओके, सो कमिंग बैक, एलिजारिन रेड एस गिव्स अ रेड कलर. एलिजारिन रेड एस is used for zara sa calcium. So if they ask you that okay, for minute quantities of calcium, zara sa calcium, what will you use alizarin red S? ये क्वेश्चन हो गया. बट नाउ द एम इज के बाकी के आंसर्स बताओ. प्रूशियन ब्लू स्टेन, व्हाट इज दिस ऑल्सो नोन एज? इट इज ऑल्सो नोन एज पर्ल स्टेन. समवन नीड्स टू बी स्लीपिंग टू फॉरगेट के ब्लू कलर देगा, बट किसे ब्लू कलर देगा? प्रूशियन ब्लू इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर आयरन. सो आई थिंक वी ऑल नो दिस. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज दिस मेसन ट्राइक्रोम स्टेन? मैम एक मेसन फॉन्टाना तो हमें याद आ रहा है. इफ यू वुड हैव टोल्ड मी मेसन फॉन्टाना तो मुझे वो तो याद था, फॉन्टाना वॉज टैनिंग ऑफ द स्किन. टैनिंग ऑफ द स्किन मतलब मेलानिन, तो वो मुझे याद है. बट यहाँ आपने लिखा मेसन ट्राइक्रोम. ट्राइक्रोम इज लाइक ट्राई कलर. ट्राई कलर, तीन कलर वाला स्टेन. ये कब यूज करते हैं? दिस इज यूज्ड व्हेन आई वांट टू डू द डिफरेंस, द फाइट बिटवीन मसल है या कोलाजन है. इमेजिन आई एम लुकिंग एट अ स्लाइड, माइक्रोस्कोपिकली आई एम लुकिंग एट अ स्लाइड. मुझे देख के नहीं समझ आ रहा है ये मसल है या ये कोलाजन है. व्हाट स्टेन विल आई पुट? आई विल पुट ट्राइक्रोम स्टेन. मसल का क्या कलर आता है? वी हैव ऑलवेज लर्नड इट एज मिस्टर. आई हैव रिटन इट इन द सेम कलर्स. मसल का क्या कलर आता है? रेड. कोलाजन का क्या कलर आता है? ब्लू. सो आई एम नॉट राइटिंग इट, दिस इज कलर कोडेड ऑलरेडी. मसल का क्या कलर? रेड. कोलाजन का क्या कलर? ब्लू. एक दो और कलर होते हैं, टोटल 3, हमें इतना ही याद रखना है. तो प्लीज एग्जाम में पढ़ना. मेसन ट्राइक्रोम पूछा तो कोलाजन मसल की फाइट चल रही है. मेसन फॉन्टाना पूछा तो टैनिंग ऑफ द स्किन, दैट इज गोइंग टू बी फॉर मेलेनिन. ओके विद एवरीवन, बिफोर आई गो फॉरवर्ड, समवन आस्क्ड मी मैम कॉसा का काला कलर, एलिजारिन रेड एस का रेड कलर, तो कैल्सीन का क्या कलर? एज आई सेड, सम थिंग्स आई एम नॉट टीचिंग, रीजन कि वो पूछा नहीं जाएगा. बट इफ यू आस्क मी अ डाउट देन आई विल हैव टू टेल यू. कैल्सीन एक फ्लोरेसेंट स्टेन है, तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी पे इट शाइन्स, ग्रीनिश कलर देता है. बट लिसन एंड फॉरगेट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. कमिंग बैक, व्हाट इज दिस? राइट जिम्सा स्टेन. ये कहाँ पे यूज होता है?
कल यूज़ होगा, कल वाले एग्जाम में मैम इसमें आप कुछ क्वेश्चन डालोगे, बिकॉज जिम्सा वर्ड मतलब हिमैट की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, हीमाटोलॉजी के स्टेन. सो कैन यू टेल मी, वो आज ही खत्म कर देते हैं, मे बी यू विल बी एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन टुमारो. सो व्हाट आर द स्टेन्स विच यू यूज इन हीमाटोलॉजी, कौन सी फैमिली स्टेन यूज करते हैं. बिफोर आई गो टू दैट, आज की पूरी क्लास में मैम टुडे यू विल से पैथोलॉजी इज द वर्ल्ड ऑफ पिंक एंड ब्लू. पैथोलॉजी में तो आप पिंक ब्लू करते रहते हो, बट जब हिमैट में जाते हो तो सडनली यू स्विच एंड यू कॉल इट रोमनॉव्स्की स्टेन. रोमनॉव्स्की स्टेन में क्या क्या आता है, इट्स नॉट वन स्टेन, एक फैमिली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. हमें 3 चीज़ें याद रखनी है. नंबर 1 लीशमैन स्टेन, नंबर 2 जो यहाँ लिखा है जिम्सा स्टेन, एंड नंबर 3 द राइट स्टेन. नाम याद कर लो, लीशमैन स्टेन, जिम्सा स्टेन एंड राइट स्टेन, ये सारे हमारे हिमाटोलॉजी के रोमनॉव्स्की फैमिली मेंबर्स हैं. तो ऑल ऑफ दिस इज ओके. क्वेश्चन 8 डन. कैन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 9. एवरीवन इन सिंक. एक दो मैच द फॉलोइंग जल्दी जल्दी निकाल लें ताकि स्पीड बढ़ जाएगा हमारा. Coming on to question 9, we will keep 1 minute target and finish it off. मैक्रोफाजेस दिए हैं, ऑर्गन्स दिए हैं, रीसेंट एफएमजी में पूछा भी गया था, तो जल्दी से लिस्ट बता दो. डोंट गो इनटू दिस मैच द फॉलोइंग. टाइम बचाते हैं, नाम बताओ. लिवर में क्या होता है, लिवर में तो एवरीवन रिमेंबर्स दिस इज नोन एज द कफर सेल. क्या बात हो रही है, मैक्रोफाजेस की बात हो रही है, दे आर द कफर सेल्स. स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन में हमने याद किया था, स्प्लीन में लिटोरल सेल्स होते हैं, सेम मैक्रोफाज, नाम अलग अलग बट है मैक्रोफाज, लिटोरल सेल. लंग्स में तो आजकल AQI खराब, डस्ट ही डस्ट है, तो व्हाट विल यू कॉल देम, यू विल कॉल देम डस्ट सेल्स, डर्टी सेल्स, और यू विल कॉल देम एल्वियोलर मैक्रोफाज, कॉमन सेंस एल्वियोलाई लंग्स. प्लासेंटा का बताओ, दिस इज अ क्वेश्चन यू गेट इन गाइनी ऑल्सो. प्लासेंटा के मैक्रोफाज को क्या बोलते हैं, हॉफबर्ग सेल. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन यू गेट इन माइक्रो ऑल्सो. नेम अ वायरस दैट गोज एंड सिट्स इन द हॉफबर्ग सेल्स ऑफ द प्लासेंटा. दैट इज जीका वायरस. यू मस्ट हैव रेड इन गाइनी, यू मस्ट हैव रेड इन माइक्रो. आई विल ऑल्सो गिव यू अ क्वेश्चन इन जीका वायरस कि ये मदर से बच्चे में जाता है, मदर टू चाइल्ड. मदर टू चाइल्ड कैसे जाएगा, इट विल गो थ्रू प्लासेंटा. थ्रू विच सेल ऑफ द प्लासेंटा, थ्रू हॉफबर्ग सेल ऑफ द प्लासेंटा. तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आया तो जीका वायरस गोज देयर. कमिंग टू द नेक्स्ट, किडनी में क्या होता है, किडनी में होता है मिजेंजियम, तो मैक्रोफाज इज मिजेंजियल सेल. अब ये तो यहाँ पर हमने जो ऑप्शंस थी वो करी. देर आर 3 मोर ऑर्गन्स विच यू विल टेल मी. ब्रेन में क्या बोलते हैं, ब्रेन मतलब ग्लायल टिश्यू, ग्लायल टिश्यू मतलब मैक्रोफाजेस का नाम रख दिया माइक्रोग्लाया. नेक्स्ट बोन, बोन मतलब ऑस्टियो, तो इट इज गोइंग टू बी नोन एज ऑस्टियोक्लास्ट. साइनोवियम मतलब साइनोवियोसाइट, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज. एनाटॉमी की बात करें तो टाइप ए साइनोवियोसाइट. सो नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आपने सारे मैक्रोफाजेस आपके लिए डन एंड डस्टेड. ओके विद दिस क्वेश्चन, और कुछ बचा नहीं, इसका पूरा खत्म हो चुका है. तो अब नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 10 आई गेव, यूजुअली आई डोंट गिव दिस बट नाउ आई सीन ग्रैन्युलोमा रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है. द थ्योरी पार्ट ऑफ ग्रैन्युलोमा हैज़ बिकम वेरी वेरी ऑब्सोलीट. आजकल दे विल गिव यू एन इमेज, दे विल से अच्छा मार्किंग करो. प्रॉब्लम क्या है, इसी रेजोल्यूशन का फोटो आएगा. राइट नाउ आई कैन जूम इन एंड शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इन द एग्जाम ये इस वाले मैग्निफिकेशन पे आएगा, विच मीन्स कोई जूम इन ऑप्शन नहीं अवेलेबल. तब क्या करेंगे, व्हेन आई सॉ ग्रैन्युलोमा का क्वेश्चन क्यों है, दे सेड लिम्फोसाइट्स, एपिथेलॉइड सेल्स, लैंगहैंस सेल, नेक्रोसिस. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें किसका होगा मैम, ग्रैन्युलोमा. नॉट जस्ट ग्रैन्युलोमा, कौन सी डिजीज का ग्रैन्युलोमा, टीबी वाला लग रहा है, बिकॉज दे आर सेइंग नेक्रोसिस एंड लैंगहैंस जाइंट सेल्स, तो मुझे तो टीबी लगा. बट दे सेड कि इसी ऑर्डर में यू हैव टू लेबल देम. आई कांट आइडेंटिफाई एवरीथिंग, इतना छोटा छोटा है. सो व्हाट आई नो फॉर अ फैक्ट कि सेंटर में जो हमेशा डेड डेड वाला पिंक पिंक कलर का एरिया, जब भी सेंटर में कुछ पॉइंट होगा दैट पार्ट विल ऑलवेज बी केशियस नेक्रोसिस. जो सेंटर वाला एरिया होता है, दिस एरिया दैट इज ऑलवेज केशियस नेक्रोसिस. तो सेंटर मुझे पता है. फिर हम चलते हैं बिल्कुल पेरिफेरी पर. ये पूरा ग्रैन्युलोमा, हु इज कवरिंग द ग्रैन्युलोमा एट द पेरिफेरी, द पेरिफेरी दैट इज लेबल्ड एज D, द पेरिफेरी इज कवर्ड बाय लिम्फोसिटिक कॉलर. सो आई गॉट टू नो कि लिम्फोसिटिक कॉलर D लेबल्ड है, केशियस नेक्रोसिस यहाँ पे A लेबल्ड है. यहाँ तक मुझे क्लियर समझ आ गया. अब इन्होंने कहा एपिथेलॉइड सेल, जो कहा मुझे छोटा सा फोटो में दिखेगा, आई डोंट नो इन दोनों में से क्या है. देन दे सेड जाइंट सेल. थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान से देखें, आई कैन सी सम सेल्स विच आर लुकिंग अ लिटिल लैंगहैंस, ऐसा हॉर्स शू जैसा अरेंजमेंट आ रहा है. तो C मतलब बना हमारा लैंगहैंस जाइंट सेल, एंड ऑटोमेटिकली फिर बचा क्या, B बचा
ऐसा दिख कुछ नहीं रहा, बट बाय रूलिंग आउट व्हाट डिड आई से कि एपिथेलॉइड सेल्स आर गोइंग टू बी बी, सो दैट मीन्स दैट एवरी टाइम व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन जरूरी नहीं है आप ए बी सी डी सब आइडेंटिफाई कर लोगे. यू हैव टू बी स्मार्ट कि अच्छा सेंटर में नेक्रोसिस है, पेरिफेरी पे लिम्फोसाइट है, ये बड़ा वाला सेल तो जाइंट सेल होगा, जो बचा दैट इज गोइंग टू बी दी एपिथेलॉइड सेल. ओके विद एवरीवन? सो नाउ you will tell me theory wale questions, and that is, before I go, there was one more question and this will wrap up your entire theory. 2 questions on granulomas I gave you, and then after that you will answer 5 more questions for me. There is a 40-year-old female patient who comes with so many organs are involved. Skin का involvement है, respiratory symptoms है मतलब lungs का involvement है, lymph node का involvement है. Skin में क्या है, erythema reddish color के nodules हैं, chest x-ray पे lymph nodes दिखाई दे रहे हैं, biopsy करी, so there is granuloma. हमारी कंट्री में ग्रैन्युलोमा वर्ड सुनते ही आई थॉट ऑफ टीबी होगा, बट देन दे सेड विदाउट सेंट्रल नेक्रोसिस, एंड व्हेन दे से विदाउट सेंट्रल नेक्रोसिस तो केशियस तो आउट हो गया. इट इज ऑब्वियसली नॉट केशियस. स्टेलेट तो वर्ड ही आउट है, स्टेलेट तो मतलब स्टार शेप, नॉट रिटन. ईओसिनोफिलिक आउट बिकॉज ईओसिनोफिल्स ही नहीं लिखा कहीं. द ओनली ऑप्शन दैट आई एम लेफ्ट विद इज नॉन केशिएटिंग ग्रैन्युलोमा. डिजीज क्या बनाया? perfect, that is known as sarcoidosis. Before I go to granulomas, you will tell me the questions of sarcoidosis that come in the exam. सबसे पहले I will start with clinical. I am writing the pointers, आप मुझे fill in the blanks बता दो, तो ये one liner class हो जाएगा. Most commonly which is the organ that is affected, that was written over here, that is the x-ray करा, lungs involve हुए तो most common. अच्छा, अगर second most common पूछा गया तो lungs के साथ क्या है, lymph nodes है, तो second most common you can see hilar lymphadenopathy मेंशन था, वो भी मुझे आता है. अब बात करते हैं कि ये हो क्यों रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग. नॉट जस्ट लंग्स एंड लिम्फ नोड, स्किन भी इन्वॉल्व हो रहा है, लिवर भी होता है, आईज भी होता है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है. इसका रीजन कैन एनीवन टेल मी? द बेस्ट पार्ट फॉर अस, नॉट फॉर पेशेंट, फॉर अस इज कि इसका रीजन, एग्जैक्ट रीजन इज नॉट नोन. नाइदर इज इट इन्फेक्शन नॉर इज इट एग्जैक्टली इम्यूनिटी, पता नहीं, रीजन इज पता नहीं. सो एग्जामिनर विल नॉट आस्क यू. सो व्हाट विल एग्जामिनर आस्क यू? ही विल आस्क यू डायग्नोसिस कैसे बनाना है. तो सबसे पहले यू विल से मैम ब्लड टेस्ट करेंगे. ब्लड टेस्ट में व्हाट हैपेंस टू द सीरम कैल्शियम लेवल्स, what happens to CD4 upon CD8 count, and is there any enzyme level that is going to be elevated. ये 3 buzzwords याद करके जाना, क्योंकि रीजन तो हमें नहीं पता बट पेशेंट का डायग्नोसिस तो बनाना है ना. पेशेंट के डायग्नोसिस में यू विल रियलाइज द सीरम कैल्शियम लेवल्स विल कम आउट टू बी इंक्रीज्ड. Angiotensin converting enzyme, ACE enzyme levels will be increased. This is very, very important. And CD4 upon CD8 ratio will also be increased. थोड़ा सा साइड पे साइड ट्रैक जाते हुए, नॉर्मल CD4 टू CD8 रेशियो कितना होता है? फर्स्ट नॉर्मल पता होगा. व्हाट इफ एग्जामिनर सेज देयर इज अ पेशेंट, हिज CD4 टू CD8 रेशियो इज 8:1. आपको नॉर्मल ही नहीं आता तो हाउ विल यू नो ये इंक्रीज्ड है डिक्रीज्ड है? सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज गोइंग टू बी very good, 2:1. Everyone says 2:1, which is perfectly right. So 2:1 is normal. So in the exam, if they say 5:1, 8:1, you'll say, अच्छा increased है, calcium भी increased है, ACE भी increased है. This is a clear-cut case of sarcoidosis. And microscopically कौन सा granuloma दिखेगा? Non-caseating granuloma दिखेगा. But now my question comes here is, you will have to tell me all the granulomas, and that will wrap up 5 more questions for you. So from 2, you have made 5 new questions. सबसे पहले if I ask you, what is the story ऑफ केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा, तो वो तो टीबी. इस केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा ओनली सीन इन टीबी या कभी कभी सार्कोइडोसिस में भी दिख सकता है? तो मैम जब आप मेडिसिन में दिस समटाइम्स लेके आते हो ना, तो फिर हमारा आंसर येस होता है, बिकॉज देयर इज नथिंग 100% इन मेडिसिन, एक आधा एक्सेप्शन आएगा ही आएगा. सो दैट मीन्स केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा इज ऑल्सो सीन इन बोथ डिजीजेज, नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा इज ऑल्सो सीन इन बोथ डिजीजेज. सिंगल बेस्ट आंसर में क्या होगा? ऑब्वियसली केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा विल बी सीन मोर विद टीबी and non-caseating granuloma will be seen more with sarcoidosis. But at any point examiner says both, तो answer for both of these will be both. What else? Do you know one more? क्योंकि sarcoidosis की बात कर रहे हैं तो non-caseating granuloma तो ठीक है. Do you know one more thing? It shows you a naked granuloma. Naked granuloma is seen in sarcoidosis. What do you mean by naked granuloma? अभी आपने बताया था मैम granuloma is like this big ball और लड्डू and you have to cover it with something. उस बॉल को हमने कवर किससे करा था? with lymphocytes. If I say the lymphocytic collar is absent, now you will call it as if, you know, एक कवरिंग था, क्लोथ्स थे,
वो क्लोथ्स हटा दिए, लिम्फोसाइट हटा दिया. सो व्हाट इज दैट नोन एज? दैट इज नोन एज अ नेकेड ग्रैन्युलोमा एंड दैट इज सीन इन केस ऑफ सार्कोइडोसिस. ओके विद एवरीवन? तो सार्कोइडोसिस के सारे ग्रैन्युलोमास भी खत्म. नाउ लेट्स कम टू योर फेवरेट. आई नो यू लव टू द आंसर stellate granuloma and all. ये somehow when I don't even teach, students answer themselves. Stellate granuloma and donut granuloma, I've shown you the answers because I know you know it. Stellate का मतलब ऐसा, without zooming in also मैम हमको आता है, ये स्टार जैसा ग्रैन्युलोमा दिखता है. एंड दिस इज सीन इन द फेमस कैट स्क्रैच डिजीज. नाउ द प्रॉब्लम इज एग्जामिनर को पता है दैट आपने ये रट्टा लगा लिया कि stellate granuloma is seen in cat scratch disease. He will not write it. He will write the organism that causes. Cat ने तो scratch करा, that is cat scratch disease, okay, but which bacteria has come into the body because of cat scratch? कौन सा bacteria? Very good, Bartonella. ना, examiner will not stop there. He will ask you which Bartonella. Bartonella quintana, Bartonella hensley, ऐसा बहुत कुछ लिखा होगा. So it is going to be Bartonella hensley, which is important. Means same question, it's a bacteria. I will ask you in microbiology also, path micro correlate hoga. If I give you this photo of pathology and I ask you which bacteria causes it, Bartonella hensley, that is cat scratch disease. Is there any other disease which can show the same stellate granuloma other than cat scratch disease? Lymphogranuloma venereum, that can also show you the same stellate granuloma. Moving on to the next. ये तो सबको आता है. डोनट. मैम कितनी बार आपने ऐसा ड्रॉ करा है कि डोनट में से ऐसे क्यू बना दो, तो क्यू बना दो मतलब इट इज गोइंग टू बी क्यू फीवर. एग्जामिनर ने भी ये यूट्यूब वीडियो देखा था, उसे पता था ये लोग डोनट में से ऐसे क्यू खींचते हैं एंड दे नो, बट दे विल, एग्जामिनर विल नाउ गिव यू ऑर्गेनिज्म. तो क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? इट इज कॉज्ड बाय कॉक्सिएला. दैट इज द क्वेश्चन दैट विल बी गिवन टू यू. क्यू फीवर विल नॉट बी रिटन, कॉक्सिएला विल बी रिटन. कमिंग टू द नेक्स्ट, डर्क ग्रैन्युलोमा. डर्क ग्रैन्युलोमा कहाँ बनता है? डर्क दिमाग में बनता है. विच इज दैट इन्फेक्शन विच यू नो सेरेब्रल कुछ कराता है, डर्क दिमाग में बनता है. सो सेरेब्रल मलेरिया. मलेरिया का तो सीजन अभी क्रॉस होके आप जा रहे हो एग्जाम देने, सो मीन्स एग्जामिनर माइट वांट टू आस्क यू दैट ये लोग मलेरिया सीजन, डेंगू सीजन में कुछ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे. सो सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट? इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. कौन सा वाला? फैल्सीपेरम. वेरी गुड. नाउ कमिंग टू, ये तो फोटोज वाले क्वेश्चन खत्म हुए. नाउ व्हाट आर द वन लाइनर क्वेश्चंस? कैन इट, अभी यू मार्क सो मेनी थिंग्स ना, ये सब मार्क करा. सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सा है? जाइंट सेल है, लिम्फोसाइट है, एपिथेलॉइड सेल है या नेक्रोसिस है? सो रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ अ ग्रैन्युलोमा इज गोइंग टू बी एन एपिथेलॉइड सेल. वन लाइनर्स रिवाइज करते हैं. एपिथेलॉइड सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होता है ग्रैन्युलोमा का. अच्छा, ग्रैन्युलोमा बना क्यों? विच मीडिएटर? आई गिव यू ऑप्शंस. TNF alpha, TGF alpha, TGF beta, interferon alpha, interferon beta, interferon gamma. इतने सारे मीडिएटर्स मैम क्या हम आज पढ़ेंगे? येस, बट इन 10-15 मिनट्स. ग्रैन्युलोमा के लिए कौन सा है? इट इज इंटरफेरॉन गामा. वी हैड ऑलवेज स्टडीड G फॉर गामा, G फॉर ग्रैन्युलोमा. नो अल्फा बीटाज ओवर हियर, नो TNF alpha, interferon alpha, beta, nothing. इट इज इंटरफेरॉन, G फॉर गामा, G फॉर ग्रैन्युलोमा बनाएगा एज अ पार्ट ऑफ विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ hypersensitivity reactions do we know? 5 total. 5 पहले 4 थे, अब 5 है. 5 में से granulomas come under which hypersensitivity reaction? They come under type 4. type 4 का दूसरा नाम डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी. वाई एम आई टीचिंग यू दिस सडनली? क्योंकि डिलेड का मतलब ये कौन सा इन्फ्लेमेशन होगा? अक्यूट इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? मैम डिलेड वर्ड ओनली टेल्स मी दैट ग्रैन्युलोमा इज अ पार्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. नाउ यू हैव डन एवरी पॉसिबल क्वेश्चन ऑन दिस प्लैनेट ऑफ अ ग्रैन्युलोमा, चाहे वो माइक्रो से आए या पैथ से आए या मेडिसिन से आए या कहीं से भी आए. दिस इज ऑल ग्रैन्युलोमा इन वन प्लेस. ओके विद एवरीवन? क्वेश्चन 11 हो गया. कैन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 12? बिकॉज इतना मीडिएटर चला तो कंटिन्यूटी बनता है ना. वन मीडिएटर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिएटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर कैकेक्सिया? मीन्स we've seen patients who have cancer, whether they get chemotherapy or they don't, they always become very very thin, very lean. ऐसा क्यों होता है? Why is it a universal rule that every cancer patient will end up losing a lot of weight and will become very thin? And the answer to that is because of TNF alpha. कैसे याद किया था? वाई नॉट TGF बीटा और इंटरफेरॉन गामा? बिकॉज मैम वी हैड लर्नड नो फूड एपेटाइट. whenever you have fever, all of us have had fever sometime or the other, हम हमेशा क्या कंप्लेन करते हैं? खाने का मन नहीं कर रहा. I don't feel like eating is what you say when you have fever. Why don't you feel like eating when you get fever? Because TNF alpha levels increase. Whenever TNF alpha levels will increase in your body, you will start saying भूख नहीं लग रही, I'm not feeling hungry. So let us start. These are the 3 things that you will confuse a lot in the exam. TNF alpha,
TGF अल्फा, TGF बीटा, एग्जाम में जाके जब ये तीन ऑप्शंस होता है ना, सब वो द लेटर्स स्टार्ट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज, सब अल्फा बीटा सब सेम सेम लगता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉर्ट इट आउट राइट नाउ बिफोर गोइंग. एग्जाम में जाके इतना टाइम नहीं मिलेगा. TNF अल्फा तो समझ आ गई मैम, इट इज गोइंग टू बी नो फूड एपेटाइट. सो आई हैव डिक्रीज द एपेटाइट विद इट. थोड़ा सा मेडिसिन की तरफ जाए तो कैन यू टेल मी दैट TNF अल्फा is actually a part of some shock. Which is the shock it is going to mediate? It is also a mediator of septic shock, if you remember correctly. It is also a mediator of septic shock. Okay, coming back, थोड़ा सा वापस आते हैं ट्रैक पे. नो फूड एपेटाइट हमने कर लिया. TGF अल्फा कौन बताएगा? ये कौन सी डिजीज सर्जरी में पढ़ोगे, मेडिसिन में पढ़ोगे? TGF अल्फा मैम कुछ गैस्ट्रिक डिजीज, एक डिजीज है गैस्ट्रिक, स्टमक. स्टमक स्टार्ट्स लुकिंग लाइक द ब्रेन. वो कौन सा डिजीज है? स्टमक का फोटो होगा बट इट विल लुक लाइक द ब्रेन. मेनेट्रियस डिजीज, यस यू विल स्टडी दिस इन सर्जरी एंड इन मेडिसिन. रिमेंबर TGF अल्फा में गैस्ट्रिक डिजीज का सोचना एंड दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द मेनेट्रियस डिजीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, TGF beta. See how it's changed. This was TGF alpha, gastric disease. This is TGF beta. What is TGF beta? Ma'am, it is बहुत fibrosis. बहुत fibrosis means if they ask you most fibrogenic cytokine, TGF beta. So all the TGF TNFs are done. अभी खत्म नहीं हुआ. Story now comes to interferons. Interferons भी तीन टाइप के ना, like over here it is written interferon alpha, beta, gamma. Where do they come from? You will tell me. What is their function? You will tell me. So that this is your flashcard. अब इसके बाद सारे mediators इधर उधर नहीं भागना. You have to all come back to this slide of question 12 and mediators will be done. Interferon alpha, beta, gamma come from LFT. So can you tell me कहाँ से आते हैं? L for what? It comes from, all story I am repeating. So rapid revision में तो मैंने पढ़ा दिया. Today is the day when you will teach me. Payback time है आज. तो बताओ LFT. L for what? Leukocyte. F for fibroblast. मतलब interferon beta comes from where? It comes from fibroblast. And interferon gamma कहाँ से आता है? T helper 1 cells. Repeating, LFT. So this is settled. But now you will tell me function क्या करेगा? I started getting functions from a lot of you कि मैम A वाला क्या करेगा? A काम करेगा. B वाला क्या करेगा? B वाला काम करेगा. गामा क्या काम करेगा? G वाला काम करेगा. So now tell me, interferon alpha is going to be what? It is going to have antiviral properties. I'll also tell you एक एक क्वेश्चन साथ साथ सुनते जाओ. They will say there is a person who's recently been detected with a viral infection. They will not mention which viral infection. They will say you did a blood test. Which mediator will you find elevated in the person's blood? So you know अच्छा virus आया था. What my body must have made? My body must have made antiviral. Antiviral मतलब my body must have made interferon alpha. Coming to the next, they will say there is a patient who has recently been diagnosed with brain disorder, that is multiple sclerosis. And which interferon can be used in the treatment of multiple sclerosis? तो brain multiple sclerosis के लिए कौन सा करोगे? Interferon beta. Next, right now I taught you which is the interferon responsible for granuloma formation. So again it is G for granuloma, it is G for gamma. So A, B, G ऐसे याद रखना, antiviral, brain and granuloma. खत्म. Everyone's okay with this? Can I move forward to question number 13? Let's see lucky or unlucky. थोड़ा सा font I think छोटा हो गया because the question was very lengthy and it was not fitting in anywhere, but I will zoom in and I will show it to you. Here we have a 25-year-old female who has come, very important, read over here, to the emergency department. So it means you have to do something quick. कुछ diseases होती हैं जो आपके दिमाग में आती है when they say emergency department. One of them usually either it's a cardiac problem or it is a brain का stroke related thing. So try searching for those. But when we say that none of these are there, there is a sudden onset that she has seen of swelling. It is not cardiac, it is not a stroke, nothing of brain. It is swelling on the face, on the lips and the tongue. फेस पे स्वेलिंग कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है. लिप्स पे भी स्वेलिंग इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी. बट लुक एट दिस, समवन्स टंग इज स्वोलन. तो ब्रीदिंग में कितना प्रॉब्लम आएगा? इफ द टंग इज entirely swollen, this means it will obstruct the posterior pathways, means there will be breathing problem. Now I understand why she came to the emergency department. But is this the first time she has had it? They are saying that this has been present since childhood, and stress या trauma जब जब होता है तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, कोई वेदर का स्ट्रेस होगा, कोई पर्सनल इमोशनल स्ट्रेस होगा, ये होता रहता है. दिस मीन्स इट इज़ एन ऑनगोइंग सिचुएशन.
Is this having some kind of a family predilection? We don't know. They say that over here she's anxious, obviously she can't breathe, swelling zyada hai, and there is also difficulty in the speaking and swallowing. That is why she came to emergency department. What is this disease? Very good. Hereditary angioedema, because now you will know edema word, hereditary angioedema. Hereditary tells me कि ये families में चल रहा है. Families में चल रहा है मतलब it is mostly autosomal dominant. एंजियोएडिमा मतलब एडिमा लिप्स का, आईज का, लैरिंग्स टंग, ऐसा किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एडिमा होगा. सो ऑब्वियसली द पेशेंट विल कम टू द इमरजेंसी रूम लाइक दिस फीमेल केम. क्यों होता है मैम ये हेरिडिटरी एंजियोएडिमा? दैट इज द क्वेश्चन आस्क्ड. ये आपका प्रीवियस ईयर एफएमजी क्वेश्चन है. इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी इन C1 एस्टरेज इनहिबिटर. हो सकता है एग्जाम में इट इज रिटन एज जस्ट C1 INH, तो डोंट गेट कंफ्यूज. सेम चीज़ है. C1 एस्टरेज इनहिबिटर और C1 INH अगर ये किसी के बॉडी में नहीं होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो आई डोंट वांट यू टू लर्न दैट कॉम्प्लिकेटेड pathway of complement system. I want you to learn two things. That मैम नॉर्मली हमारा ये जो C1 इनहिबिटर है वो क्या करता है नॉर्मली आपके और मेरे में? टुडे यू आर सिटिंग हियर लिसनिंग टू दिस क्लास इन द इवनिंग. C1 इनहिबिटर इज डूइंग व्हाट इन योर बॉडी? इट इज स्टॉपिंग. इनहिबिटर है ना, तो इसका क्या काम है? इट इज गोइंग टू कंट्रोल द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. इट विल कंट्रोल द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. मीन्स अभी सिटिंग ओवर हियर ऐसी फालतू में माई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज वर्किंग नहीं. C1 इनहिबिटर ने का काम नहीं करना. Stop. But imagine if someone doesn't have C1 inhibitor, controller चला गया, can I say your body will now be uncontrolled? If your body is uncontrolled, that is why the patient is having edema, because अब कोई control ही नहीं बचा body के complement system पे. So that is when the patient is going to have hereditary angioedema. So everyone is okay with this. यही swelling का history आएगा, यही emergency room में, and usually एक female होगी वो emergency room में आपको मिलेगी with swelling in her tongue, larynx, face, lips, eyes. That's it. Now coming to next, when will they give you this history? Deficiency of C5 to C9. इसका और इसका मुझे आंसर बताओ. C5 to C9 क्या होता है मैम? कॉम्प्लीमेंट पाथवे में आई विल हैव टू राइट इट अगेन. C5b to C9 is known as MAC. MAC मतलब membrane attack complex. This is normal. If I say membrane attack complex is deficient, if I say किसी के पास C5b to C9 नहीं है तो M नहीं है मतलब MAC नहीं बना. मैक नहीं बना तो विच इन्फेक्शन? वेरी गुड. मेनिंजाइटिस किसकी वजह से? मेनिंजाइटिस तो कैन हैपन बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ऑल्सो, हीमोफिलस ऑल्सो, नाइसीरिया मेनिंजाइटिडिस. सो दे विल से नाइसीरिया मेनिंजाइटिडिस इन्फेक्शन. दे विल नॉट राइट नाइसीरिया मेनिंजाइटिडिस, दे विल राइट इट एज मेनिंगोकोकस. वो भी सेम चीज़ होती है. नाइसीरिया मेनिंजाइटिडिस का दूसरा नाम. रिमेंबर दिस क्वेश्चन. ये एफएमजी का फेवरेट PYQ. ये दोनों फेवरेट ऑल्टरनेट करते हैं. अगर लास्ट टाइम ये आया तो इस बार ये आएगा, एंड दैट इज हाउ दे प्ले विद इट. दो ही क्वेश्चन है. अगर स्वेलिंग के साथ इमरजेंसी रूम में फीमेल आई है, हेरिडिटरी एंजियोएडिमा. ओके, सो आई थिंक देयर वर सम okay, some balloons came randomly, so I think this probably is the trigger for it, so I won't do it. Anyway, coming back, hereditary angioedema is going to be because of C1 esterase inhibitor. Secondly is going to be deficiency of C5b to C9. What is that? That is going to be the MAC. MAC नहीं होगा तो क्या बन जाएगा मैम? MAC नहीं होगा तो पेशेंट को meningitis. ये दोनों आपको याद रखना ही रखना है. Coming to this, we are coming to every option. What is this? Deficiency of C1, C2, C3, C4. पहले तो all of you will tell me which is the most common deficiency that you have in human beings, if at all. C1 2 3 4 9 तक होता है ना, तो most common कौन सी deficiency होती है? And that is going to be C2. Human beings में most common deficiency is C2. But अगर ये starting के सारे ही चले गए, C1 2 3 4, all the early, can I say early complement proteins are deficient? Very good. That has been associated with SLE. तो ये वाला question भी हो गया. Now although this will not be asked, but many of you are asking me, ma'am प्रोपर्डिन कौन से पाथवे में होता है? प्रोपर्डिन हैपन्स इन द ऑल्टरनेट पाथवे, और प्रोपर्डिन इज अ पार्ट ऑफ द ऑल्टरनेट पाथवे. सो देर इज नो डिजीज विच इज given to properdin deficiency, but of course if properdin is deficient, patient will have generalized infections hoga, but there is no syndrome or disease which is given to it, and that is why I didn't mention anything specific. Okay with everyone? ये दोनों तो as it is imprint कर लो अपने mind में, and you have to learn it. Moving on to question 14. थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन विद जेनेटिक्स. इफ द मदर एंड द फादर हैव बीटा थैलेसीमिया ट्रेट,
what percentage of their children are expected to have beta thalassemia major? बीटा थैल ट्रेट है दोनों पेरेंट्स को, तो बच्चे में बीटा थैल मेजर मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 25%, तो कर लेते हैं मैथमेटिक्स। पहले तो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट मदर को है और फादर को है, हिमैट से स्टार्ट करो, पता कैसे लगा? हाउ डिड यू गेट टू नो? मैम हमने एक इंडेक्स करा होगा, व्हाट इज दैट इंडेक्स विच इज लेस देन 13? थैलेसीमिया वाला निमोनिक क्या है? यू मस्ट हैव डन द मेंजर इंडेक्स। मैम मेंजर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेंजर इंडेक्स M and R means Menzer index is MCV divided by RBC. If it is going to be less than 13, you will think of thalassemia. ऐसे याद किया था ना, thalassemia less than 13 Menzer index. But this is like, let's assume she came during her pregnancy, her Menzer index was less than 13. आपको लगा शायद thalassemia है। फादर का मेंजर इंडेक्स करा लेस देन 13, यू सेड शायद थैलेसीमिया, शायद, बिकॉज इफ आई वांट टू कंफर्म व्हाट इज दैट हीमोग्लोबिन लेवल दैट आई एम गोइंग टू टेस्ट एवरीवन, HbA2 लेवल्स, नॉट ए तो अडल्ट हीमोग्लोबिन आपके मेरे पास नॉर्मल वाला, नॉट ए। HbA2 is another hemoglobin. If that is more than 3.5%, then you will say, Acha, now thalassemia trait has been confirmed. So when they are saying na mother and father have thalassemia trait, उन्होंने ऐसी हवा में नहीं बोला, based on Menzer index नहीं बोला, उन्होंने ये HbA2 levels test करे, they came out to be more than 3.5, then they were certain कि हाँ confirm है, अब ये दोनों trait हैं, अब इनको genetic counseling करना है। I have to tell them that they could be carrying a baby with thalassemia major, what percentage? 25. So कैसे पता लगा? When I say beta thalassemia trait, ये कौन से टाइप का डिजीज है? इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव। रिसेसिव कैसे लिखते हैं? छोटा वाला अल्फाबेट, स्कूल डेज में करते थे, नीट यूजी टाइम में करते थे, बड़ा वाला अल्फाबेट इज डोमिनेंट, छोटा वाला अल्फाबेट इज गोइंग टू बी रिसेसिव। तो ऑटोजोमल रिसेसिव मतलब छोटे वाले अल्फाबेट में प्रॉब्लम है, मदर के भी छोटे वाला अलील हैज अ प्रॉब्लम, फादर का भी छोटा वाला अलील हैज अ प्रॉब्लम। नाउ लेट्स डू दैट 2x2 एनालिसिस। पहला बेबी विल बी कैपिटल ए, तो ये बेबी तो बिल्कुल नॉर्मल, गुड टू गो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, द नेक्स्ट वन इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। व्हाट विल दिस बेबी बी? दिस बेबी विल ऑल्सो बी बीटा थैलेसीमिया ट्रेट लाइक पेरेंट्स, मतलब कैरियर। अच्छा, अगली सिचुएशन फिर से कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर से दिस बेबी इज ऑल्सो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट लाइक द पेरेंट्स। बट द लास्ट सिचुएशन व्हेन इट बिकम्स स्मॉल ए, दिस इज बीटा थैल मेजर। एंड यही तो पूछा था, व्हाट परसेंटेज? तो 1 out of 4 kids means 25% is the answer. How else will this question come? Same question एंड यू हैड, आपने लेट्स अज्यूम आप रट्टा लगा के गए थे कि अच्छा दोनों मदर फादर को अगर थैल ट्रेट होगा तो बच्चे का थैलेसीमिया मेजर 25%. I now tell you, mother and father are beta thalassemia traits. What percentage of babies will also be beta thalassemia traits? And that is going to be 50%, because 2 out of 4 babies will be thalassemia trait. तो रट्टा नहीं लगा के जाना। मेजर होने का चांस 1 out of 4 बच्चों में है, ट्रेट होने का चांस 2 out of 4 बच्चों में है। So do a 2x2 analysis over there, don't mug up and go. Question 14 also done, because genetics की बात हो रही है, so let's do this same question. Something around this came in अभी वाला INI-CET, that is why I gave this question to you. What is the most likely diagnosis of a 5-year-old child? Eating a lot means hyperphagia, milestones में प्रॉब्लम है, एंड ग्रोथ रिटार्डेशन है। मैम जैसे ही आपने कहा ग्रोथ रिटार्डेशन, माइलस्टोन्स, बट हाइपरफेजिया वी लिंक्ड टू ओबेसिटी। एंड व्हेन आई रेड दी ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया था? मे बी एकदम से नहीं स्ट्राइक करा कि जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, नहीं समझ आई, यू थॉट पीडियाट्रिक्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, राइट? सो देन यू स्टार्टेड थिंकिंग कि ऑप्शंस में मुझे क्या क्या दिया है। एंजल मैन सिंड्रोम अभी पढ़ेंगे, उसे क्या बोलते हैं? हैप्पी पपेट। हैप्पी बच्चा हमेशा हैप्पी, हंसता रहता है। आई डोंट सी एनीथिंग हैप्पी लाफिंग, तो आई डोंट थिंक इट इज एंजल मैन। पेटाउ सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइजोमी। व्हाट? पेटाउ सिंड्रोम इज ट्राइजोमी 13. But Pettau syndrome has 3 things which I have taught you and you have studied in pediatrics also. Pettau syndrome is trisomy 13. उसके अंदर मैम P for Pettau, P for polydactyly, extra fingers, यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। Cleft lip and cleft palate, again not written. And there is coloboma. What is coloboma, guys?
आईज में क्या होता है, एक ऐसे की होल जैसा डिफॉर्मिटी होता है, की होल डिफॉर्मिटी ऑफ द आईज. एनी ऑफ दीज थिंग्स रिटन ओवर हियर, नॉट रिटन. पेटाओ तो क्लियर कट रूल्ड आउट. ओके, व्हाई इज दिस नॉट फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम? बिकॉज यूजुअली दे डोंट गिव मी 5 साल का बच्चा फॉर फ्रेजाइल एक्स, बट स्टिल फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए कुछ होगा विच इज़ वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक. मे बी दे विल गिव मी अ फोटो, मे बी दे विल गिव मी अ डिस्क्रिप्शन. सी आई नो आप सबको आंसर आता है प्राइडर विली, बट माई पर्पस ओवर हियर इज दैट वो तो आपको वैसे भी आता था बाई गिविंग द टेस्ट एट 12 o'clock. You should be revising 4 more diseases and then you will say ना कि मेरा test and discussion class complete हुआ है. That is the purpose of doing a live class over here, right? So fragile X syndrome में क्या क्या होगा मैम? सबसे पहले there is going to be a long face. Remember that I told you this looks like Amir Khan from PK. That is fragile X syndrome. तो big ears होंगे ऐसे, so there are large ears. Then there will be a large mandible that you see and there will be a long face. तो ऐसे क्यों मैम? ऐसे हम याद कर लेते हैं ना कि फेस पे सब ऐसा लॉन्ग लॉन्ग लार्ज होगा, इतना भी याद करके चले जाए, एमसीक्यू एग्जाम है. आई वुड हैव टोल्ड यू कि ऐसा कर सकते हो, बट वंस मोस्टली स्टूडेंट्स डू दिस. ऑब्जेक्टिव पेपर है ना कि अच्छा मैम कुछ पार्ट्स होंगे फेस के एंड एवरीथिंग विल बी लॉन्ग और लार्ज. द क्वेश्चन दैट केम इन द एग्जाम वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट seen in fragile X syndrome? Not seen. Long face, large ears, large mandible and long nose. And then students who had just learned कि हाँ फेस पे सब कुछ लॉन्ग या लार्ज है, they got stuck. That is why I have clearly written कि क्या याद करके जाना है कितना. So that is why I said PK Amir Khan. That is long face, big ears, big mandible. This is what is a fragile X syndrome. But what is the most characteristic? ये सब तो चलेगा, but which is like star mark लगाना, जो most characteristic feature होता है large testicular size. Repeats everyone has already told me कि fragile X syndrome में CGG repeats होता है मैम, ये आपने हमें बता दिया तो हमें आता ही था. तो कमिंग बैक, ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं है, फ्रेजाइल एक्स रूल्ड आउट. कमिंग बैक टू ऑब्वियसली द आंसर इज प्राडर विली, इट इज नॉट एंजल मैन. तो अब ये हमें रिवाइज करना पड़ेगा बिकॉज दिस टाइम प्राडर विली केम 2 days बैक इन द INICT एग्जाम एंड इन दैट एग्जाम दे आस्क्ड यू वेरी कैरेक्टरिस्टिकली अबाउट इम्प्रिंटिंग, डिलीशन. सो नाउ यू विल टेल मी द टफेस्ट पार्ट, सो यू हैव टू गो थ्रू टफ थिंग्स ऑल्सो. प्राडर विली वर्सेज एंजल मैन का पहले मुझे पैथोजेनेसिस बताओ. दोनों ही डिजीजेस का पैथोजेनेसिस कौन सा क्रोमोसोम? वेरी गुड, इट इज CGG इट इज क्रोमोसोम 15. एक्सेलेंट. ओके, सो यू गॉट द आंसर. थोड़ा सा लैग में आ रहा है. ओके, दोनों का क्रोमोसोम कौन सा है? 15. क्रोमोसोम दोनों का सेम है बट द जीन इज डिफरेंट ना. वेरी गुड, आई गॉट द आंसर. प्राडर विली में मैम आपने बताया था दैट दिस इज टू डू विथ स्नॉर्प जीन. स्नॉर्प जीन इज प्राडर विली. एंड एंजल मैन में आपने कहा था इट इज UBE3A जीन एंड दैट इज हाउ वी हैड लर्नड इट कि UBE3A जीन जो होता है वो एंजल मैन का जीन है एंड स्नॉर्प जीन जो होता है दैट इज द जीन दैट वी हैव फॉर प्राडर विली. जीन याद हो गया. क्रोमोसोम क्या है दोनों का? दोनों का 15. बट हो क्या रहा है? सो नॉर्मली लाइक लेट्स जस्ट कंसिडर यू एंड मी, our chromosome 15. One chromosome 15 you have got from maternal mother, one chromosome 15 you have got from father, that is paternal. तो सबके पास दो chromosome 15 normal. This means सबके पास दो SNORP gene, one SNORP gene from mother, one SNORP gene from father. तो सबके दो SNORP gene हो गए. But ma'am, why waste? If there is something extra, then you decide that एक को एक्टिव और एक को स्लीप मोड. एक को एक्टिव मोड में रखेंगे, एक को स्लीप मोड में रखेंगे. नॉर्मली इन यू एंड आई, हम सब यहाँ बैठे हैं फिट एंड फाइन, ऑल गुड, हेल्दी. नॉर्मली व्हाट हैज हैपेंड इन अस व्हाट हैज हैपेंड, वी डिसाइडेड दैट आवर मदर्स स्नॉर्प जीन इज गोइंग टू इम्प्रिंट. नॉर्मली हमारे में डिसाइड हुआ कि मदर स्नॉर्प जीन को है उसे इम्प्रिंट मतलब क्या? उसे सोने भेज देते हैं. उसे कहते हैं दैट यू relax, you don't have to work, you can sleep. Who is working? You are sitting here. Whose SNORP gene is working for you all the time? Father's SNORP gene is working. For all of us it is the father's SNORP gene which is working. So we are normal, we are healthy. But what if the father's SNORP gene undergoes a deletion? What if there is going to be a paternal deletion? Then I will be worried. एक SNORP gene सोने भेज दिया, स्लीप मोड. दूसरा स्नॉर्प जीन गायब. दिस मीन्स इट इज ऑल टुगेदर गायब. दैट इज नोन एज प्राडर विली सिंड्रोम. सो प्राडर विली सिंड्रोम इज व्हाट इम्प्रिंटिंग एंड व्हाट डिलीशन? मैटरनल इम्प्रिंटिंग, पैटर्नल डिलीशन. कैसे याद करा था? बाय द नेम प्राडर विली. बाय द नेम प्राडर विली मीन्स पापा's region is deleted. Papa's region deleted. So there should not be any confusion.
पापाज रीजन डिलीटेड, पैटर्नल डिलीशन हुआ तो दैट इज गोइंग टू बी प्रैडर-विली. बट अगर ऑपोजिट कर दिया, ऑपोजिट मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंजल मैन में विच जीन एम आई टॉकिंग अबाउट UBE3A. अगर प्रैडर-विली में पापाज रीजन वॉज गेटिंग डिलीटेड, एंजल मैन में हुज रीजन इज गेटिंग डिलीटेड, mother's region is getting deleted. Is that okay with everyone? Some of you are saying that the video is stuck. Honestly, at my end, the net is also working fine and everything seems to be, touchwood, working at a good pace. I don't see any concern at my end for net or anything else. Is there any problem that others are facing? So you will only have to tell me, because for me the audio, video and everything is working up till now, is working fine. So maybe it could be a device related or an internet related issue for some people. Okay, so it's not happening for most others. So I think it is fine. Okay, so coming back, simple. आखिरी दिन क्या याद करके जाएंगे? दोनों में प्रॉब्लम 15 क्रोमोसोम, जीन का नाम याद कर लिया, SNORP UBE3A. अब मुझे याद करना है who is showing what deletion. Prader-Willi is showing papa's region deleted, Angelman is showing mother's region deleted. but ये वाला आजकल नहीं पूछ रहे. They are asking you, other than this, is there any other way other than ये imprinting deletion? Is there any other way in which this disease can occur, in which Prader-Willi and Angelman can occur? Yes, and the other way is known as disomy. So for everyone who has not read in detail, please अगले 2 मिनट के लिए थोड़ा सा I will spend 1 minute extra here and I will explain this, because I think now this is what examiner will touch upon. What did I say first line? Chromosome 15, one copy from mother and one copy from father. Same way over here, one copy from mother, one copy from father. Let's assume someone has maternal disomy, which means both these chromosomes have come from the mother. तो उसके पास क्या है? पहला वाला क्रोमोसोम 15 भी मदर से है, दूसरा वाला क्रोमोसोम 15 भी मदर से है. मैटरनल डायसोमी ऑफ क्रोमोसोम 15. So whose chromosome he doesn't have? Papa's chromosome he doesn't have. Same cheez na, Papa's region has been deleted. So if Papa's chromosome 15 has not come, what is the disease that will happen? Prader-Willi. Same way if I say paternal disomy मतलब पापा से ही दोनों क्रोमोसोम्स मिल गए, मदर्स रीजन नॉट देयर, मदर्स रीजन डिलीटेड मतलब कौन सा? एंजल मैन. तो एग्जाम में जाके ना ये डायग्राम अपने माइंड में बनाना. एग्जामिनर हैज रिटन मेटर्नल डायजोमी, यू विल सर्च अ मेटर्नल डायजोमी मतलब मेटर्नल दोनों मेटर्नल से आए, पापाज रीजन नॉट देयर, दैट इज Prader-Willi. Opposite kara, so that is going to be Angelman. Is that okay with everyone? So now coming back, the reason over here was not this. The reason was कि मैम clinical features में कैसे differentiate करेंगे? So that we can write over here only. Prader-Willi is what? Prader-Willi is छोटा मोटा बच्चा. What is छोटा मोटा बच्चा? So छोटा मोटा means the patient is going to be short in height and the patient is going to be obese. The reason for obesity is written over here. खाना ज़्यादा खाता है. Why is this बच्चा eating so much of food? This is the question that was mentioned in this INI-CET कि there is a बच्चा with increased ghrelin activity. Ghrelin is something जिससे भूख लगती है. You feel hungry. So these patients have a lot of ghrelin. They will feel very hungry. They will eat a lot of food and they will end up with obesity. That is छोटा मोटा बच्चा of Prader-Willi. Versus what is Angelman syndrome? Angelman syndrome का दूसरा नाम is happy puppet. Happy puppet means बिना बात के this child will be laughing, he will be doing in your OPD. No rhyme or reason. So happy puppet. So finally answer is done. Angelman Prader-Willi का पूरा discussion done. We can move on to question 16. Okay, so over here when I look at this, what they had asked you over here is not the disease. Disease आपको खुद बताना है. Then they've asked you a general pathology question. So here you have a 25-year-old male. You can see involuntary movements that have happened, and this time I've tried a lot of screenshots because I wanted कि जो thought process आपका exam में चल रहा था while giving the test, the same screen should be in front of you so that you're thinking in the same way. I just want that visual memory to work for you. That is the reason. Okay, so यहाँ पर they've given you history of Huntington's disease है father में diagnose हुआ था 40 की एज में, father passed away at the age of 50. तो फादर का तो एज था 40 to 50 का. फादर के बाद जब अगली जनरेशन में आया तो नाउ इट हैज़ कम डाउन टू अ यंगर एज, ऑलमोस्ट 50 से हाफ एज पर ही शुरू हो गया, 25 पे शुरू हो गया. व्हाट इज द रीजन दैट दिस पर्सन हैज़ एन अर्लियर प्रेजेंटेशन फ्रॉम हिज फादर? डिजीज तो सेम है बट अर्लियर प्रेजेंटेशन इज बिकॉज ऑफ एंटिसिपेशन. वाई एंटिसिपेशन का क्या मतलब होता है? एंटिसिपेट मीन्स फ्यूचर, फॉर्च्यून टेलिंग. लाइक ओवर हियर आफ्टर लुकिंग एट योर आंसर्स एंड टॉकिंग टू यू गाइज टुडे, आई एम एंटिसिपेटिंग कि आप बहुत
अच्छे नंबर लेके आओगे FMG एग्जाम में, दिस इज माई फॉर्च्यून प्रिडिक्शन, आई एम बिकमिंग एन एस्ट्रोलॉजर। तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, इफ यू आर परफॉर्मिंग सो वेल एंड गिविंग सच गुड आंसर्स, आई एम एंटिसिपेटिंग यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। सेम वे, बिकॉज यहाँ पे फादर को हंटिंगटन्स था, तो मुझे पता है हंटिंगटन्स इज अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर, तो आई कैन एंटिसिपेट कि अच्छा अगली जनरेशन में ये यंगर एज में आ जाएगा, उसकी अगली जनरेशन में इट विल कम एट एन इवन यंगर एज। सो आई कैन डू दैट फॉर्च्यून टेलिंग विद ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स। एंटिसिपेशन का दूसरा नाम होता है शर्मैन्स पैराडॉक्स, बिकॉज एंटिसिपेशन वर्ड हैज बीन गिवन मेनी टाइम्स इन द एग्जाम। I think now instead of using this word they will use Sherman's paradox and it means the same. What is Sherman's paradox? के अगली generation में symptoms जल्दी जल्दी आएंगे, from 50 it will be 40, from 40 next generation 30, then 25, then 10. Why? Because the number of repeats are increasing with each generation. Can you tell me for Huntington disease what is the repeats? Because मैम हमने एक mnemonic पढ़ा है, hunting in a cage. Hunting in a cage tells me that this is going to be hunting in a cage. CAG repeats are going to be there. And hunting in a cage मतलब E रह गया ना, E मतलब कौन से रीजन में, जीन के इंट्रॉन में या एक्सॉन में, इट इज गोइंग टू बी इन द एक्सॉन। सो ऑलवेज रिमेंबर hunting in a cage. केज कैसा दिखता है? केज में क्या होता है मैम? 4 वॉल्स होती है ना। व्हाट इज केज? 4 दीवारी। तो कौन सा क्रोमोसोम होता है 4 दीवारी वाला? इट इज गोइंग टू बी क्रोमोसोम नंबर 4। याद रहेगा, हंटिंग इन अ केज, CAG रिपीट्स, एक्सॉन में प्रॉब्लम होता है, क्रोमोसोम नंबर 4 में प्रॉब्लम होता है। एंड व्हाट इज द अदर नेम? मेडिसिन में से हंटिंगटन डिजीज नहीं बोलते, व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन एज हंटिंगटन्स कोरिया। व्हाट इज कोरिया? कोरिया मीन्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो पेशेंट में था, सो दैट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। नाउ कमिंग बैक, आई हैव अंडरस्टूड दिस एंटिसिपेशन, ये हर ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट में एप्लीकेबल है। कैन यू टेल मी, एक्सॉन वाला तो हंटिंग इन अ केज हो गया, इंट्रॉन के कैन यू जस्ट क्विकली 15 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट होता है, यू हैव टू टेल मी द रिपीट्स। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में तो यू हैव टोल्ड मी दैट दैट इज गोइंग टू बी CGG रिपीट्स, ये तो आपने मुझे बता दिया। मायोटोनिक dystrophy, why have I written it like this? Myotonic dystrophy, because now instead of CGG it is going to be CTG repeats. Okay, and what is Friedreich's ataxia? We had learnt it as friend गाना गा रहा है, Frederick sounds like friend, friend गाना गा रहा है means GAA repeats. Everyone remembers this? तो clinical questions कैसे आएंगे? एक तो आएगा मैच द फॉलोइंग, दीज 4 डिजीजेज विल बी मेंशन्ड एंड द रिपीट्स विल बी मेंशन्ड, मैच तो आप कर लोगे। आई थिंक अ क्लिनिकल क्वेश्चन विल कम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का क्लिनिकल क्वेश्चन तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, आमिर खान फ्रॉम द मूवी PK एंड मैक्रो ऑर्किडिज्म, वो तो हमने कर ही लिया। मैम मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का क्लिनिकल क्वेश्चन कैसा आएगा? एनीवन हु कैन टेल मी कि क्या फेस का प्रोफाइल होगा? बिकॉज द नेक्स्ट स्लाइड हैज फोटोज, फोटोज देख के तो बता ही दोगे, खुद से सोचो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में कैसा फेस होता है पेशेंट का, कैसा आईज में कौन से टाइप का कैटरैक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो हमें पता है CTG रिपीट्स कौन से क्रोमोसोम में आता है? इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम 19। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये मेडिसिन के क्वेश्चंस चल रहे हैं। हैचेट फेसिस, यस, sharp jawline, that is the kind of faces this person is going to have, hatchet faces, very good। कौन सा cataract? ophthalmology, Christmas tree cataract, yes। so हम सब कुछ CTG से याद हो गया ना। when I write CTG तो repeats कौन से हैं? CTG। what is the type of cataract? it is going to be Christmas tree cataract। and clinically patient को क्या होगा? you will tell the patient, let's assume you will shake hands with the patient will shake hands with you but will not be able to leave it, मतलब grip पकड़ा but cannot leave the grip, means cannot terminate grip। CTG, एग्जाम में जाके CTG 2-3 बार बोलना, पूरा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डन। CTG आर द रिपीट्स, CTG विल टेल यू क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट, CTG विल टेल यू कैन नॉट टर्मिनेट ग्रिप, ग्रिप पकड़ा तो ग्रिप छोड़ेगा नहीं, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्लिनिकल क्वेश्चन हो गया, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स डन। कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट जेनेटिक्स क्वेश्चन 17 ओवर हियर? यस गाइज, मूविंग ऑन, देर इज़ अ 15-year-old बॉय एंड आई डोंट नो बट ये बहुत सालों से 15-year-old बॉय का ही हिस्ट्री आता है, 16 भी नहीं होता, 14 भी नहीं होता, इट ऑलवेज स्टार्ट्स एज अ 15-year-old बॉय हिस्ट्री। देर इज टॉल स्टेचर एंड देर इज गोइंग टू बी लॉन्ग लिम्स, जॉइंट डिसलोकेशन है, लॉन्ग फिंगर्स, इको पर एओटिक रूट में प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेटेड? ये बहुत ईजी वाला क्वेश्चन था, अल्ट्रा ईजी क्वेश्चन, एंड दिस इज अ डायरेक्ट PYQ, यू गाइज नो दिस, आई मीन आई वुड
वुड बी लाइंग इफ आई से कि नया कुछ बना के दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट PYQ डाला है. फिब्रिलिन 1 इज व्हाट दे वांट टू टेस्ट बिकॉज एवरीवन नोज फिब्रिलिन में प्रॉब्लम है, बट कौन से जीन? फिब्रिलिन 1 2 3 4 इज द डेप्थ. फिब्रिलिन 1 में प्रॉब्लम है, दैट इज प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम? इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 15. अभी कुछ और पढ़ा था क्रोमोसोम 15 का, ये तो मार्फन सिंड्रोम की बात हो रही है. क्रोमोसोम 15 अभी हमने पढ़ा एंजलमैन एंड प्रैडर-विली ऑल्सो क्रोमोसोम 15. तो जल्दी से मार्फन सिंड्रोम में कौन से जीन का प्रॉब्लम? फिब्रिलिन 1 जीन का प्रॉब्लम. प्रैडर-विली में कौन से जीन का प्रॉब्लम? स्नॉट जीन का प्रॉब्लम. एंजलमैन में कौन से जीन का प्रॉब्लम? UBE3A जीन का प्रॉब्लम. क्रोमोसोम 15 की कहानी खत्म. इज दैट ओके? सबको याद आ गया? आई डेंट वेट फॉर आंसर्स बिकॉज टाइम वेस्ट होता. आई नो यू हैव आंसर्ड इट अर्लियर, तो आता है. क्रोमोसोम 15 का तो एक डब्बा बन के तैयार. कमिंग बैक, ये मार्फन्स था क्यों? बिकॉज इन मार्फन्स, हाउ हैव आई मेड यू ऑलवेज लर्न इट, पूरा वो अपना वीडियो रिवाइज करके जाओगे. सो मार्फन्स का मतलब बस वही, मैम मार्फन्स दोबारा लिख लो तो आपको डिजीज समझ आ जाती है. सबसे पहले कार्डियक इशू क्या होता है? माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स. द मोस्ट कॉमन कार्डियक अबनॉर्मैलिटी इफ आस्क्ड इज माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स. और कुछ होता है कार्डियक में? एओर्टिक डिसेक्शन. एओर्टिक डिसेक्शन मतलब एओर्टा टेयर होना. टेयर होना मतलब पेशेंट गॉन. वेरी कॉमन कॉज ऑफ डेथ. इफ दे आस्क यू मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मार्फन्स, ऑफ कोर्स एओर्टिक डिसेक्शन. देयर वाज अ सेटलमेंट ऑफ लिटिल बिट ऑफ एओर्टिक रूट डायलेशन. तो कुछ एओर्टा प्रॉब्लम स्टार्ट तो हुआ है इस पेशेंट में. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. आईज में क्या क्या होता है? रेटिनल डिटैचमेंट कैन अकर. और कुछ होता है आईज में. इफ आई कॉल इट मार्फन्स डिजीज, डिसलोकेशन ऑफ लेंस हैपेंस. कमिंग बैक, वेरी गुड, हैज ऑलरेडी आंसर्ड. डिसलोकेशन ऑफ लेंस तो ऑफ्था का क्वेश्चन आ जाता है मैम, बट ऑफ्था में डिसलोकेशन नहीं लिखते. दे राइट इट थोड़ा सा ऐसा फैशनेबल वे में, एक्टोपिया लेंटिस. लेंटिस मीन्स लेंस, एक्टोपिया मीन्स अलग जगह. एक्टोपिया लेंटिस, डिसलोकेट हो गया. सो मार्फन सिंड्रोम इज गोइंग टू शो यू सुपेरोटेम्पोरल. व्हाट डू यू मीन बाय सुपेरोटेम्पोरल? द लेंस is going to go supero means up, and temporal near the temples means it's going to go towards the outer side, just like a fan. मार फैन. फैन कहाँ होता है? फैन ऊपर देखो अपने रूम पे, फैन कहाँ लगा हुआ है? ऊपर लगा हुआ है. सो फैन ऊपर होता है. वेयर इज फैन गोइंग टू गिव ऑल द एयर? फैन विल गिव द एयर आउटसाइड. तो फैन में क्या होगा? टेम्पोरल. सुपेरो टेम्पोरल, दैट इज फैन. वर्सेस इनफेरोनेजल, इफ इट हैज टू गो डाउन एंड इन. इनफेरोनेजल इज सीन इन होमोसिस्ट. इन्यूरिया shows you inferonasal dislocation. ये भी याद रहेगा. कमिंग बैक, आईज में रेटिनल डिटैचमेंट, आईज में डिसलोकेशन. नाउ लेट्स कम टू जॉइंट्स एक्सेट्रा. फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, कोई भी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हो, शोल्डर हो, बट मोस्ट कॉमनली थम जॉइंट. आई कांट डू इट एंड शो यू बिकॉज आई डोंट हैव मार्फन्स, बट दे हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. मीन्स दे कैन जस्ट show 360 and any kind of rotation and any kind of range of movements, most commonly of the thumb. So most commonly thumb joint, freely movable joint is noted. What else? Arachnodactyly, ये यहाँ लिखा था. लॉन्ग फिंगर्स, लॉन्ग लिम्स, ये सब बार बार लिखा था. इतना लॉन्ग फिंगर्स होता है, समटाइम्स दे कॉल इट स्पाइडर फिंगर्स. स्पाइडर फिंगर्स मतलब दे आर एबल टू मेक दैट, you know, they can make a web. इतना लंबा लंबा फिंगर्स होता है. सो दैट इज एरिकनोडेक्टाइली. इन दे आर वेरी टॉल. सच में 9 फीट टॉल नहीं होते, बट दिस दे आर वेरी वेरी टॉल. 7.5 फीट टाइप पेशेंट्स होते हैं. एंड फाइनली स्टर्नम में दे हैव पिजन चेस्टेड एंड वी सी दे हैव संकन चेस्ट रिटन ओवर हियर. तो सारे फीचर्स थे. दैट इज वाई आई मेड इट मार्फन्स एंड हेंस आई केम टू फिब्रिलिन 1 इज द जीन म्यूटेशन that these patients are going to carry. But now if I ask you, out of these, can you tell me which is the most common abnormality? jaldi se batao and finish this. Most common abnormality in Marfan syndrome, I'll write it chota chota over here. Most common abnormality in Marfan syndrome. Quick answer. I'm taking 10 seconds waiting for the lag because I want you to answer this. jaldi se bata do. Most common, very good, is going to be skeletal abnormalities, because yahi pe to question mein twist aayega. If I would have asked most common cardiac abnormality, और answer was mitral valve prolapse. मैंने cardiac नहीं पूछा ना, मैंने पूछा which is the most common abnormality overall out of all of these. cardiac है, eyes है, skeleton में है, तो most common is going to be skeleton. तो please exam में read. For everyone who answered MVP, read carefully in the paper, okay? You won't do this mistake. Moving on to question 18. So 18 and 19 are your favorite pedigree analysis. I know you really like it. This came as a same PYQ in your previous year
papers and they said which of the following diseases over here will show the mode of inheritance. Inheritance दिया है, disease आपको select करना है. I know I could have skipped pedigree, the class would have been 10 minutes shorter, but then later on you would have said कि मैम pedigree समझ में नहीं आया. So I decided that the class can be 10 minutes longer, but we have to do pedigree. Over here, what did I notice? Disease कब कब हो रहा है? Disease एक ही gender में हो रहा है. Disease is happening in the males, and what is the status of the females? The females are carriers. Whenever this situation occurs that the disease happens in male and the carrier situation is seen in females, we are dealing with X-linked recessive. अब इनमें से कौन सा है X-linked recessive? Prader-Willi तो मैम अभी अभी आपने पढ़ाया, वो तो imprinting, Papa's region, that is not autosomal X, वो तो है ही नहीं. Okay. When I talk about anything to do with structure of the body like chondro, cartilage or muscle or bone, जैसे for example I say osteogenesis imperfecta, कोई भी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात होगी जैसे कि मसल, कार्टिलेज, बोन, ये वाले जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं दे आर यूजुअली ऑटोसोमल डोमिनेंट. सो achondroplasia is autosomal dominant. Next, whenever I talk about any kind of metabolism problem, enzyme problem, जैसे कि iron overload, copper overload, Wilson disease क्या है? Copper overload. All these kind of things tend to be autosomal recessive. तो I know you have done mnemonics with me only. I have taught you so many mnemonics, but exam में जाके कई बार वो सारा ABCD सारा मिक्स हो जाता है ना. So then your basic should be settled कि बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी ना. फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑटोसोमल डोमिनेंट. Cartilage achondroplasia, autosomal dominant. If there is some muscle myotonia, dystonia, tone में problem है muscle के, there is autosomal dominant. Versus कोई भी metabolism का problem आएगा, lysosomal storage disorders, glycogen storage disorders, iron overload like hemochromatosis, copper overload, ये सब autosomal recessive में चला गया. Very good. You guys know the pasta चावल mnemonics, so I'm very happy. But यहाँ पे पूछा था XLR. XLR is Wiskott-Aldrich syndrome. सो नाउ द क्वेश्चन वॉज इसे टू लेयरिंग क्वेश्चन कहते हैं कि पहले तो आप जानो कि कौन सा इनहेरिटेंस दैट इज लेयर नंबर 1, आफ्टर दैट यू नो कौन सा डिजीज दैट इज लेयर नंबर 2. वेन एवर टू लेयर क्वेश्चन विल कम इन द पेपर, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट बी पेशेंट बिकॉज इफ़ यू स्पेंड 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा वो सॉल्व हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपका टाइम शॉर्ट होगा, टाइम कहीं बचेगा. एक आउटलायर अपीयरेंस आएगा ना जब CMV आप आंसर करोगे या रीड स्टर्नबर्ग सेल आंसर करोगे और 10 सेकेंड में हो जाएगा. एक क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस आने ही वाला है गॉशेस डिजीज का, 5 सेकेंड्स में हो जाएगा. तो कहीं टाइम बचेगा. सो इफ यू हैव टू स्पेंड 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, गिव इट. डोंट हरी ओवर दैट, डोंट पैनिक कि अच्छा इस पे मेरा 1 मिनट लग गया या 1.5 मिनट लग गया तो अब मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि नाउ वी हैव टू डू ऑल दीज पेडिग्रीज. डू वी गाइज नो व्हाट आर द रूल्स ऑफ पेडिग्रीज दैट आई हैव टॉट यू? पेडिग्री जो सबसे ज़्यादा तंग करता है मैम, यू हैव टू डू द 2G रूल. जब भी पेडिग्री देखोगे 2G रूल आपको देखना है. 2G रूल मतलब जेंडर एंड जेनरेशन की बात करनी है. पहले तो बता दो सिंपलेस्ट पेडिग्री. अगर आया मदर टू ऑल फादर टू नन, कौन सा पेडिग्री होता है? माइटोकॉन्ड्रियल. वाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल DNA तो आता ही सिर्फ मदर से है. माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज मदर, तो मदर के माइटोकॉन्ड्रियल DNA विल गो टू ऑल द किड्स. Father का mitochondrial DNA does not go to any kid. Did we have a question like this in today's exam only? Yes, they said which of the following disease exhibits the inheritance pattern over here. If you look very very carefully, is this mother to all father to none? Yes, over here you can see the mother. and exam में क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में भी फील अच्छा ये मदर फादर और ये सारे 5-6 लोग इनके बच्चे. नो, बी वेरी सर्टन दैट फ्रॉम द मदर you know how many kids did she actually give birth to. She gave birth to 3 kids. Mother to all. When she became a mother later on, again it is going to be mother to all. When she became a mother later on, again it is going to be mother to all. But when he became a father, the father has not given the disease to any of the kids. What is this, guys? Do you all agree कि ये mitochondrial inheritance है? मान लिया अब इनमें से कौन सी disease है जो mitochondrial inheritance में आती है? That is going to be the Kearns-Sayre disease. I will come to mitochondrial diseases in 5 minutes. अभी के लिए what I wanted to tell you कि was mitochondrial disease क्या होता है? Mother to all, father to none. Everyone a quick thumbs up. यहाँ तक समझ आ गया? Mitochondrial तो easy है मैम, mother to all, father to none हो जाएगा. तो ये तो हमारा एक गया. अब बचे 5 पेडिग्रीज. तो this means एग्जाम में आपको confusion बहुत रहता है, बट आ सिर्फ 6 पेडिग्री सकते हैं. There is no 7th possibility that I can get.
6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आना है तो उसी में से आना है, तो आई हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि मुझे ये 6 रूल्स अगर आते हैं ना तो फिर तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। सबसे पहले आई विल ट्राई कि ये फिट हो रहा है, मदर टू ऑल फादर टू नन। अगर फिट हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रियल, स्टोरी ओवर। नहीं फिट हो रहा, देन आई गो इन टू द 2G रूल। वॉट इज़ 2G रूल? पहले देखो जेंडर, वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू डिलीनिएट कि ऑटोजोमल प्रॉब्लम बात हो रहा है या एक्स और वाई क्रोमोजोम बात हो रहा है। इफ दे से मेल मेल मेल, बीमारी सिर्फ मेल 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 में है, फीमेल 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 में है, जेंडर का प्रॉब्लम है तो मतलब एक्स एंड वाई, तो फिर सिर्फ ये 2-3 पेडिग्री सोचना है। इफ दे से कि नहीं जेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो जेंडर बायस एट ऑल, इट इज हैपनिंग इन बॉयज ऑल्सो, इट इज हैपनिंग इन गर्ल्स ऑल्सो, तो यू ओनली हैव 2 पेडिग्रीज टू थिंक फ्रॉम। या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ओवर हियर द डिजीज इज हैपनिंग इन बॉयज, ओवर हियर बॉयज, देन गर्ल्स, तो इज देर एनी जेंडर बायस? नो, मतलब ये ऑटोसोमल है, बॉयज में भी हो रहा है, गर्ल्स में भी हो रहा है। यहाँ पर भी ये गर्ल्स में हो रहा है, फिर यहाँ गर्ल्स में हो रहा है, फिर यहाँ बॉयज में हो रहा है, तो अगेन मैम दोनों में हो रहा है, ये भी ऑटोसोमल। सोचो ना, अब आपके पास 6 पेडिग्री है, जैसे ही पता लगा बॉयज गर्ल्स दोनों में हो रहा है, 2 पेडिग्री बचे, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव। तो अगला जी, व्हाट विल यू लुक एट आफ्टर जेंडर? आई विल लुक एट जेनरेशन, बिकॉज ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब डोमिनेटिंग, हर जेनरेशन में बीमारी आएगी, डोमिनेट करेगी, ग्रैंडफादर, फादर, सन, ग्रैंडसन, सबको होता जाएगा। वेर इज ऑटोसोमल रिसेसिव, रिसेसिव मीन्स कभी कभी बीमारी आएगी। सो नाउ इफ यू लुक इन generation 1, do you see the disease? Yes. In generation 2, do you see the disease? Yes. In generation 3, do you see the disease? Yes. So when all generations are affected, तो क्या बनाया एग्जाम में? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगला देखो, फर्स्ट जनरेशन में डिजीज़ है, फिर मैम सेकंड जनरेशन में नहीं है, थर्ड जनरेशन में इट्स नॉट देयर, फोर्थ जनरेशन में वापस आ गया। आर द जनरेशंस बीइंग स्किप्ड? क्या बनाया? दिस इज नाउ गोइंग टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव। डज इट बिकम अ लॉट ईजियर? एग्जाम में जाते ही सबसे पहले तो जेंडर देख लो, अगर मदर टू ऑल फादर टू नन हो रहा है, स्टोरी ही खत्म, माइटोकॉन्ड्रियल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जेंडर बायस नहीं है तो या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव। बट अगर जेंडर का प्रॉब्लम है, बॉय बॉय बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल, ऐसा कुछ चल रहा है, तो देन एक्स एंड वाई लिंक्ड इज व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक ऑफ। सो व्हाट इज दिस एक्स एंड वाई? लेट मी सी। इफ द डिजीज, लुक एट द फर्स्ट पेडिग्री हियर, इज देयर अ जेंडर बायस? मैम मुझे बॉयज में डिजीज दिखा, यहाँ भी बॉयज में द डिजीज दिखा, जेंडर बायस है। द डिजीज इज हैपनिंग ओनली इन द मेल्स। नाउ इमीडिएटली वो लाइक, अच्छा ये तो एक्स और वाई में से ही कुछ है, आई एम नॉट कंप्लीटिंग इट, अभी मुझे इतना पता लगा एक्स और वाई में से कुछ है, बिकॉज द डिजीज इज हैपनिंग इन मेल्स। लुक एट दिस वन पेडिग्री ऑन द राइट ओवर हियर, मेल 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 मेल, ये भी जेंडर बायस चल रहा है मैम। इसमें भी द डिजीज इज हैपनिंग इन द मेल्स। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस फैमिली में, पहली फैमिली में कितने मेल मेंबर्स है? फर्स्ट मेल मेंबर, फिर उसके बाद सेकंड मेल मेंबर, थर्ड मेल मेंबर, और भी आगे बहुत सारे हैं। डू ऑल द मेल members have the disease? No. Out of all of them, only if 5-6 male members are there, only 2 have the disease. When the disease is happening in few of the males, and can you see the status of the females? The females are carriers. That situation will be known as XLR. Versus, look at the number of males in this family. टोटल फैमिली में 4 मेल मेंबर्स हैं, 4 में से चारों को डिजीज चल रहा है, सब मेल मेंबर्स में प्रॉब्लम है, मतलब सबका वाई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगा। सो देन दिस विल नाउ बिकम अ वाई क्रोमोसोम प्रॉब्लम। सो इज इट इजी? एग्जाम में मैंने देखा मेल 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 चल रहा था, तो उसके बाद मैंने इतना देखा, सम ऑफ द मेल्स आर हैविंग अ प्रॉब्लम, तो एक्सएलआर, ऑल ऑफ द मेल्स आर हैविंग अ प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली फिर तो वाई क्रोमोसोम है। ये भी क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? गलती कहाँ होती है? सो लिसन टू दिस गलती वेरी केयरफुली। वेन यू सी दिस पेडिग्री, अभी तो आपको पता है बचा क्या मैम? XLD, ये होगा XLD। एग्जाम में नहीं होगा, एग्जाम में यू विल गेट दिस एंड आई टेल यू व्हाट यू टेंड टू डू। यू से मैम ने कहा था 2G रूल लगाना, जेंडर जेनरेशन, एंड आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली एज अ स्टूडेंट क्या गलती होता है। जेंडर में एवरीवन सेज बॉयज में हो रहा है, गर्ल्स में हो रहा है, गर्ल्स में हो रहा है, गर्ल्स में हो रहा है, बॉयज में हो रहा है। मैम ने कहा था बॉयज में भी हो रहा है, गर्ल्स में भी हो रहा है, दिस मीन्स ऑटोसोमल। फिर मुझे देखना है जेनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, तो ये सब बना के आते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। Most common error of the exam is this pedigree being marked as autosomal dominant, because you से अच्छा सारे genders में है, सारे generations में है autosomal dominant, but gender का एक point आपने miss करा, and that point was when you were counting, you don't have to count them as boy girl, you have to consider it as a family. कभी भी exam में boy girl करके नहीं mark करना, consider it as that this is a father
एंड फादर हैज़ गिवन द डिजीज़ ओनली टू वन टाइप ऑफ किड्स. फादर ने डिजीज़ सिर्फ अपनी डॉटर्स को दिया. फादर हैज़ गिवन द डिजीज़ ओनली टू द डॉटर्स, नॉट टू एनी ऑफ द सन्स. जेंडर बायस है. जो जेंडर बायस पहले नहीं दिखा वो मुझे अब दिख रहा है. दैट फादर इज नॉट गिविंग द डिजीज टू द सन्स. फादर हैज़ अ जेंडर बायस and is giving the disease only to the daughters. That is XLD. Remember, when you will see that the dad is giving a disease only to the daughters, you will always mark it as XLD. Dad giving the disease to the daughters is XLD. Is that okay with everyone? मुझे पता है फर्स्ट लुक में सबको ये ऑटोसोमल डोमिनेंट लगेगा, ऑल जेंडर्स ऑल जनरेशन, बट डैड गिविंग द डिजीज टू डॉटर्स प्लीज देख लेना. विच मीन्स एग्जाम में जाके अगर कुछ भी समझ नहीं आया, आपने मैम मुझे 6 सेंटेंसेस याद करा दिए, एक एक करके फिट करना शुरू करो, कुछ तो फिट होगा ना उसमें. यू विल कम टू एन आंसर. मदर टू ऑल, फादर टू नन लग रहा है, नहीं लग रहा तो चलो आउट. ऑल जनरेशन्स ऑल जेंडर्स तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, जनरेशन स्किप हुआ तो ऑटोसोमल रिसेसिव, सारे मेल मेंबर्स इन्वॉल्व हो गए तो वाई क्रोमोसोम, कुछ मेल मेंबर्स इन्वॉल्व हुए तो XLR, डैड टू डॉटर्स गया तो XLD. 6 में से कुछ तो फिट होगा ना, क्योंकि 7th तो पॉसिबिलिटी नहीं है. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व पेडिग्री. बट लास्ट एग्जाम everyone was very happy because I think 2 weeks before the exam we did one question on pedigree and as it is वो आया था, but वो pedigree chart नहीं आया था. It came as a symbol. The last exam had pedigree symbol, adopted वाला symbol पूछा गया था, which was not there in most of the textbooks and I don't know why. Just by gut feeling हमने 2 हफ्ते पहले पढ़ा था. So everyone was very happy that it came in the exam because many students who had not studied otherwise did not know this. तो जल्दी से एक बार symbols revise कर दो मेरे लिए. I've already written everyone supersonic speed पे start करो आंसर करना. The first one, if I see a round symbol in pedigree that is indicative of female and यही अगर square बन जाता है that is indicative of male. ये तो हमारा knowledge है, ये नहीं पूछेंगे. They will ask you something like this: what if the gender is depicted by this diamond? Diamond means gender unknown. ऐसे ना कुछ नया नया पूछते हैं हर बार सिंबल में. सो जेंडर इज गोइंग टू बी अननोन. कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर मेल और फीमेल को ऐसा पूरा शेड कर दिया, दिस मीन्स उनमें डिजीज चल रहा है, सो दैट इंडिकेट्स अ डिजीज. बट अगर उनको ऐसा हाफ हाफ शेड करा, सो हाफ हाफ शेड मतलब दे आर ओनली कैरिंग द जीन, डिजीज नहीं है. डिजीज के लिए पूरा पूरा एंड कैरिंग के लिए हाफ हाफ. इफ आई पुट एन एरो, देखो अब अगला, एक एरो बनाया, पॉइंट करा टूवर्ड्स द फीमेल, point kara towards the male, that means index case. Index case means this female has come to me in the OPD, she is my patient, he is my patient. From her I will ask, अच्छा आपके पेरेंट्स को क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स को क्या है, ब्रदर्स सिस्टर्स अंकल आंट्स. तो ये हमारा पेशेंट है. एरो मतलब इंडेक्स केस. और अगर एरो को ऐसा थ्रू एंड थ्रू कट कर दिया, पूरा काटा लगा दिया, दैट इज वॉट, दैट इज डेथ. इफ द पर्सन हैज डाइड इन द फैमिली बिकॉज और वट एवर रीजन्स, तो कट करना मतलब डेथ होना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्कल के अंदर छोटा डॉट, दैट इज नोन एज एक्स लिंक्ड कैरियर. सो मैम ये वाला भी कैरियर था, तो ये तो था ऑटोसोमल कैरियर. अगर सर्कल के अंदर डॉट लगाया तो मतलब एक्स क्रोमोसोम का कैरियर. अगर ये सिंगल लाइन तो पता है, अगर एक लाइन लगाया व्हाट डज दैट मीन, तो मैरिज. सिंगल लाइन इज गोइंग टू बी मैरिज. और अगर ऐसा बाय चांस अगली स्लाइड में आएगा, ऐसा डबल लाइन लगाया तो व्हाट डज दैट मीन, डबल मैरिज. नो, सिंगल लाइन का मतलब होता है सिंगल मैरिज, जस्ट मैरिज. ओके, डबल लाइन का मतलब होता है मैरिज अमंगस्ट रिलेटिव्स और मैरिज अमंगस्ट कजन्स, दैट इज consanguineous marriage. What is the question that can come on this? कि why is it said genetically, जब आप genetic counseling करते हो, why is it said that you should not get married in the same family or in your even close or even distant relatives? Because consanguineous marriages, the kids will be at an increased risk of autosomal recessive disorders. That is why many a times when there is a family, जब हमें suddenly बहुत सारे autosomal recessive disorders दिखते हैं, so we ask what is the marital status, how is the marriage chart happening in this family. कहीं कभी cousins में कोई marriage का element है, that is when we start thinking of too many autosomal recessive disorders. And if there is a break in the marriage, as you can see over here, तो वो obviously will mean some kind of separation, divorce, whatever, so वो break से denote होगा. अब चलते हैं बच्चों की तरफ. if they just make simple ऐसा डायग्राम बनाया कि पहले एक बेबी गर्ल हुई, सेकंड बच्चा क्या था, सेकंड बच्चा आफ्टर फ्यू इयर्स वाज अ बॉय. सो व्हेन एवर दे वांट टू गिव किड्स ऐसे दिखाते हैं. मतलब कौन सा एरो, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट वाला एरो.
अगर उन्होंने ऐसा कॉमन एरो बना दिया, कॉमन एरो का मतलब होता है एक ही प्रेगनेंसी में 2 किड्स मीन्स ट्विंस. सो दिस इज ऑल्सो ट्विंस एंड दिस इज ऑल्सो ट्विंस, बट इसमें यू कैन सी द ट्विंस आर जॉइंट इन बिटवीन, मतलब एक ही जाइगोट से ट्विन आया था. देयर वाज अ सिंगल जाइगोट टू बिगिन विथ, तभी वो जॉइंट है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस. और अगर अलग अलग जाइगोट आया तो देम दे विल मेक अलग अलग लाइन्स. इज दैट ऑल्सो ओके विद एवरीवन? व्हाट इफ दे डोंट हैव किड्स by choice or by infertility or whatever reason, बच्चे नहीं है, so they will make dash 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 no kids. And the question that came in the last exam was this: whether it is a female with a square bracket or whether it is a male with a square bracket. is square bracket मतलब adopt किया गया, so this is going to indicate adopted. very very important for you to know. ये आपका last time का FMG question था. all these are done. अभी this is not over because one pedigree you told me right now was mother to all father to none, माइटोकॉन्ड्रियल पता है, बट उसका डिजीज कौन सा था? कर्न-सायर डिजीज, वो तो ठीक है. कैन यू टेल मी फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस विच इज द मोस्ट कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज? जल्दी से बता दो सो दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. द मोस्ट कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इज सेड टू बी मेलास. दैट विल ऑल्सो कम. कर्न सायर तो बहुत रेयर काइंड ऑफ डिजीज है, ज़्यादा कॉमन क्या है? मेलास. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेलास? ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम है, बट क्या प्रॉब्लम होता है? ब्रेन में प्रॉब्लम होता है. माइटोकॉन्ड्रियल एनसेफेलोपैथी. वाई एम आई टीचिंग यू दिस? अभी 2 दिन पहले INICT में माइटोकॉन्ड्रियल पे क्वेश्चन आया. माइटोकॉन्ड्रियल एनसेफेलोपैथी. व्हाट एल्स इज देयर? मेलास. लैक्टिक एसिडोसिस इज गोइंग टू बी देयर. लैक्टिक एसिडोसिस. एंड व्हाट इज द लास्ट वन? And that is going to be stroke like episode. So if they will say, I'll tell you a question. There is a mother is having episodes of encephalopathy. Mother is having lactic acidosis on investigations. Mother has had a single stroke episode. So mother में ये सब problem चल रहा है. The mother has given birth to 2 daughters. Both the daughters are also having similar episodes because mother से कहाँ जाएगा? Mother to all. That is why the daughters are also having the same. They will say, what disease are we talking about? We are talking about मेलास. Is that okay? Question 19 भी हो गया. Question 20 तो ऐसे time pass question because इसके बिना तो GT is incomplete ना. What is this appearance known as? Spotter. कुछ question है ही नहीं. Tell the image. What is this classical crumpled tissue paper appearance that you have? What do you see it in? Gaucher's disease. गॉशर्स डिजीज में क्या एंजाइम डेफिशिएंसी होता है? ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज डेफिशिएंसी. ये फोटो एज मतलब जितना जूम इन करके देख सकते हो देख लो बिकॉज दिस हैज़ टू कम. इमेज आएगा, रिटर्न आएगा, पर आएगा जरूर. टच वुड एंड आई होप आ जाए बिकॉज यू विल गेट इट राइट. यू कैन सी देयर इज अ बिग सेल ओवर हियर एंड यू कैन सी इसके बीच में वो जो वाइट वाइट लाइन्स है. 2 दिन पहले INICT में भी लिखा आया था क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस इन गॉशर्स डिजीज. सो दिस वाइट लाइन्स, दिस इज व्हाट इज क्रम्पल टिश्यू पेपर. But now if they want to give you clinical history, what kind of clinical history do they give you? They always give you, we call it Gaucher's disease. Ouch. Bacha will come to you with ouch means with a lot of bone pain. Bone pain will be mentioned agar clinically they want to give you Gaucher's disease. Okay, done. Thank you guys.